چاتیوں جیسے ہی میلا پہ حملہ کرنے لگتا ہے صلاح الدین ایوبی کا پھینکا ہوا خنجر اسے آ لگتا ہے۔ میلا سکھ کا سانس لیتی ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام پکارتی ہے۔ سلطان کہتے ہیں لاچار خواتین کو مارنا تمہاری عادت میں سے ہے، چھوڑ دو کونس کو۔ تو چاتیوں کہتا ہے میرے میلا کو مارنے میں کیوں رکاوٹ بن رہی ہو میں جانتا ہوں، ہمت ہے تو آ کر لے جاؤ۔ بورو سلطان سے کہتا ہے ہم نے جو لینا تھا وہ لے لیا، اب واپس لوٹتے ہیں بھائی۔ مگر سلطان کہتے ہیں ہم نے جو کام شروع کیا ہے اسے ختم کریں گے۔ یہ کہتے ساتھی سلطان تلوار بے نیام کرتے ہیں تو سب ساتھی تلواریں نکال کے آگے بڑھتے ہیں اور کافروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ چاتیوں کے ساتھ موجود سب سلیبی سپاہی جلدی مارے جاتے ہیں۔ میلا آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے تم نے جو کیا یہ مجھے اپنا مقروض کرنے کے لیے ہے تو جان لو کہ میں اپنے راستے سے نہیں پلٹوں گی۔ جواب میں سلطان کہتے ہیں ویسے میں چاہتا بھی نہیں کہ تم پلٹو، تم اپنی بربادی اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہو، تم تو بچے کو بھی تکلیف پہنچانے کی حد تک راستے سے بھٹک گئی ہو۔ میلا کہتی ہے میرا اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین غصے سے کہتے ہیں بس بہت ہوا، میں تمہارے بہانے نہیں سننے والا، اب جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی میلا چلی جاتی ہے اور سلطان ساتھیوں کے ساتھ چاتیوں کو گھیر لیتے ہیں۔ چاتیوں کہتا ہے صلاح الدین سب کچھ فاش ہو گیا ہے، میلا کا تمہارے پاس پناہ لینا اور تمہارا اسے مجھے نہ دینا میں سمجھ رہا ہوں۔ جواب میں سلطان کہتے ہیں بہتان نہ باندھو، اللہ پوشیدہ حقائق کو بغیر کسی کمی کے جانتا ہے۔ میں نے اپنی روایات کے مطابق لاچار عورت کو قتل ہوتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند نہیں کی، اس لیے انہیں کچھ گھڑسوار آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین انہیں کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مکرو چاتیوں ایک دم سے وار کرتا ہے، مگر سلطان خود کو بچاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ ابراہیم ہنو کو زخمی کر کے گھٹنوں پہ لے آتا ہے۔ ادھر خیمے میں کراتیگن آرام کر رہا ہوتا ہے۔ ایتھس بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کراتیگن ہوش میں آتے ہوئے شہزادے اسماعیل کو پکارتا ہے۔ یہ دیکھ کر البیز بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور آخرکار آپ ہوش میں آ گئے ہیں۔ کراتیگن پوچھتا ہے اسماعیل کہاں ہے؟ جواب دینے کے لیے ہجر آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے حضور پریشان نہ ہو، ملک اسماعیل ٹھیک ہے۔ اسے دیکھ کر کراتیگن بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم نے اپنے ولی عہد کو صحیح سلامت بچا لیا ہے، اب اگر میں پاتال میں بھی گر جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر چھوٹا سلطان یہاں ہے تو بڑا سلطان کہاں ہے؟ ایتھس کہتے ہیں وہ بورو لوگوں کو دیکھنے گئے ہیں، ابھی واپس نہیں لوٹے۔ یہ سن کے کراتیگن کہتا ہے بورو لوگ نہیں ہیں، سلطان نہیں ہے، پھر تم یہاں کیوں ہو؟ یوں بوڑھی عورتوں کی طرح میرے سر پہ کیوں کھڑے ہو؟ تو ایتھس کہتے ہیں رضائی ماں سمیت تمہارے بانجے کو ہمارے سپرد کیا گیا ہے اور تم بھی زخمی ہو۔ کراتیگن کہتا ہے دیکھو اگر سلطان کسی لڑائی میں کود پڑے یا قید ہو گئے تو چلو شاباش، یہاں انتظار نہیں کرتے اور چلتے ہیں۔ وہ اٹھنے لگتا ہے کہ ایتھس اور البیز اسے روک لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ادریس کہتا ہے کراتیگن ٹھیک کہتا ہے چلو چلتے ہیں، مگر ایتھس کہتے ہیں ادریس تسلی رکھو، اگر ہمارے نکلتے ہی یہاں پہ حملہ ہو گیا تو جو حکم سلطان کا ہے وہی کچھ کیا جائے گا۔ ادھر سلطان چاتیوں کو تھپڑ مارتے ہیں اور تلوار گرا دیتے ہیں۔ وہ تلوار اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہاں پہنچنے والا بالین تلوار پہ پاؤں رکھ لیتا ہے اور سلطان سے کہتا ہے میں اپنی امانت لینے آیا ہوں، مگر سلطان کہتے ہیں میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ بالین کہتا ہے ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے تم سے جس بات کا وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ مگر سلطان کہتے ہیں چاتیوں تمہیں دوں گا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس کے میرے پاس نہ ہونے اور چاہو تو اس کی کھوج میں لگ کر ڈھونڈ سکتے ہو یہ کہا، لیکن میں نے تم سے پہلے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ بالین کہتا ہے میرا یقین کرو، اس کا زندہ رہنا اس کے مردار ہونے کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سلطان کہتے ہیں دوبارہ ایک بھی مسلمان اس کے ہاتھوں سے تکلیف نہیں سہے گا، کیا تم اس بات کی ضمانت دے سکتے ہو؟ جواب میں بالین کہتا ہے نہیں دے سکتا، لیکن جس زندان سے یہ بھاگا ہے اس زندان میں واپس ڈالنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ صلاح الدین برائے مہربانی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سلطان مان جاتے ہیں اور بالین کے سپاہی چاتیوں کو دبوچ لیتے ہیں۔ بالین شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے وہاں سے لے جاتا ہے، اس لیے میں گمشتگین سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم نے مجھ سے جو کچھ لیا ہے میں اسے تم سے ایک ایک کر کے واپس لوں گا صلاح الدین۔ تو سلطان اسے کہتے ہیں تم اس حالت میں بھی ہمیں للکار رہے ہو، تم بالکل ناکارہ ہو گمشتگین۔ گمشتگین تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے کون ناکارہ ہے دیکھیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان پہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ میں ماسک والا شخص آتا ہے اور بالڈون کو اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے بالڈون۔ تو بالڈون کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں نکل سکتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے تمہیں نکلنا ہی ہے، کچھ کو تمہاری ضرورت ہے، تم اپنے بابا کے تخت کو مزید خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ بالڈون کہتا ہے لڑکا جیت گیا، اس نے بہت پہلے میری بہن سے شادی کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہوگا۔ جواباً وہ شخص کہتا ہے بادشاہت کو جیتا جانے والا عنوان نہیں ہے، اپنے بابا کی باتوں کو یاد کرو، تقدیر بادشاہت کا تعین کرتی ہے۔ بالڈون کھڑے ہو کر پوچھتا ہے اچھا تو یہاں سے کیسے نکلوں؟ وہ شخص بلندی کی جانب دیکھتا ہے تو بالڈون کہتا ہے یہ جگہ بہت اونچی ہے، میں اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ شخص کہتا ہے عظیم بادشاہ جہاں تک ان کی گردن نہیں پہنچتی ان کاموں میں کامیاب ہو کر پہچانے جاتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالڈون اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے اور پلٹتے ہوئے کہتا ہے دیکھو میں یہ نہیں کر پا رہا، مگر وہ شخص وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اور بالڈون کبھی سامنے دیکھتا ہے کبھی پیچھے، کبھی سامنے کبھی پیچھے۔ جنگل میں بورو اور گگبورو کے ہاتھوں گمشتگین کے ساتھی کٹ رہے ہوتے ہیں۔ بورو کا راجا پہ وار کر کے اسے زمین پہ پٹک دیتا ہے جبکہ سلطان گمشتگین کو زخمی کر کے گھٹنوں پہ لے آتے ہیں اور اس کی تلوار گرا دیتے ہیں۔ گگبورو ایک دم سے آگے بڑھ کر تلوار گمشتگین کے گلے پہ تان لیتا ہے اور سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ سلطان گمشتگین سے کہتے ہیں تمہارا کہرے کانا تمہاری غداری پہ مور ثابت کر چکا ہے، ایک مسلمان امیر کا دنیاوی لالچ کی وجہ سے اس حال کو پہنچنا شرمناک حرکت ہے۔ تو گمشتگین کہتا ہے تم جسے لالچ سمجھ رہی ہو وہ مردانگی سے تعبیر ہے، میرے اس چہرے کے پیچھے بہت بڑے راز ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا ہیں وہ راز، بتاؤ تاکہ تمہارے مرنے سے پہلے سب کچھ فاش ہو جائے۔ گمشتگین کہتا ہے میں برسوں تک تمہارے درمیان رہا، اپنا اصل چھپا کر تمہیں اپنے ایک اچھے مسلمان ہونے کا یقین دلایا، لیکن سب کچھ ایک مقصد کے لیے تھا، کچھ ہمیشہ عیسائیت کا رہے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب لوگ چونک جاتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں منافق برتن اپنے اندر موجود چیز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، تمہاری صورت اسلامی ہی کیوں نہ تھی لیکن تمہارے اعمال ہمیشہ تمہارے حقیقی مقصد کے لیے تھے، اب کہنے کو کچھ نہیں بچا، حساب آخرت کے لیے رہ گیا ہے۔ سلطان کے اشارہ کرتے ساتھ ہی گگبورو گمشتگین کا گلا کاٹ ڈالتا ہے اور گمشتگین زمین پہ گر کر اپنے انجام کو جا پہنچتا ہے۔ یہ دیکھ کر کراکوش گگبورو سے کہتا ہے مبارک ہو گگبورو، منافق اور منکر تباہ ہو جائیں، بھائی چارہ باقی رہے، اللہ اکبر۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب ساتھی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ بالڈون رینگتا ہوا ایک سرنگ سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ایک آواز گونجتی ہے تمہاری بیماری تمہاری سب سے بڑی زرہ ہے بالڈون، تم جب تک اسے باندھے رکھو گے تمہیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت
ضرورت नहीं है। बाल्डोन खाकदार रास्ते से आगे बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन कुछ में लाडगाय और सबिला की शादी हो रही होती है। पादरी उनसे कहता है, खुदावंद के सामने अब से आप एक दूसरे के साथी और हमसफर हैं। आपकी शादी मसीही दुनिया के लिए ताकत और बरकत लाई। लाडगाय आगे बढ़ता है और सबिला के माथे पर प्यार करता है। मारिया काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है। लाडगाय सबिला से कहता है, सबिला थोड़ा मुस्कुराओ। तो सबिला उससे कहती है, मेरे भाई की गैर मौजूदगी में की गई इस शादी से ज्यादा उम्मीद ना रखो। मारिया अपनी खादमा से कहती है, ये शादी कुछ में हमारे खात्मे के मुतरादिफ है। अब लाडगाय सिर्फ बाल्डोन की गैर मौजूदगी में बादशाही का ताज पहनने का इंतजार कर रहा है। बाहर से बालेन आगे बढ़ते हुए चातरियों से कहता है, थोड़ी देर में तुमने मेरे और विलियम के खिलाफ जो साजिश रचाई है उसका एतराफ करोगे, तुम पे मुकदमा चलाया जाएगा। मगर वो देखता है कि लाडगाय सबिला के साथ चट से बाहर आता है। उन्हें शादी के लिबास में उलबोस देखकर बालेन चौंक जाता है। चातरियों उससे कहता है, लगता है तुम्हारे मुझसे कहे गए अल्फाज तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आएंगे बालेन। लाडगाय अपने मकसद तक पहुंच गया है। मेरे ख्याल में यरूशलेम के अगले बादशाह का तयन हो चुका है और यकीनन बादशाह अपने बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेगा। बालेन को देखकर सबिला भी बहुत परेशान हो रही होती है। तो लाडगाय उससे कहता है, अब आपको मुस्तकबिल की तरफ देखना है शहजादी। ये कहते साथ वो आगे बढ़ता हुआ बालेन और चातरियों के पास आता है। चातरियों उससे कहता है, हम आपकी शादी में खाली हाथ आने के लिए माजरत हुआ है। तो लाडगाय उससे कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कौंत बालेन खाली हाथ नहीं आई। चातरियों कहता है, कौंत बालेन ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि इसका ख्याल था कि ये मेरे जरिए अपना नाम साफ कर सकता है, लेकिन इसने जब ये मंजर देखा तो इसके मंसूबे बदलते नजर आ रहे हैं। लाडगाय स्पाइयों से कहता है, हाथ खोल दो चातरियों के। ये सुनते साथ ही स्पाई चातरियों के हाथ खोल देते हैं। बालेन कुछ नहीं कर पाता और सबिला के पास आता है, मगर उसे कुछ कहे बगैर ही आगे बढ़ जाता। कुछ में दिल बर्दाश्ता बालेन आगे बढ़ रहा होता है कि इसलिए मैं मारिया उसके पास आती है और कहती है, ये आपके लिए एक मुश्किल दिन होना चाहिए। बालेन उसे नजरअंदाज करके जाने लगता है कि मारिया कहती है, हमें बात करनी चाहिए। ये सुनते साथ ही बालेन स्पाइयों को वहां से भेज देता है। दूसरी तरफ लाडगाय का कमांडर विलियम और मार्कोस को लेकर जा रहा होता है और उनसे कहता है, तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। यह सुनकर विलियम कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे कि इस काम की सजा मौत है। तो कमांडर कहता है, जब तक बादशाह कैद से नहीं निकल आता फैसला कौन करेगा? जब एक बार लाडगाय तक संभाल लेगा तो ये सब चीजें भूल जाएंगी। आगे बढ़ते हुए बाल्डोन उन्हें देखता है और छुप जाता है। विलियम कमांडर से कहता है, बादशाह आते हैं बादशाह जाते हैं, लेकिन खुदावंद का शहर कुछ हमेशा साबित कदम रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि खुदावंद इसे भूल जाएंगे तो इसका मतलब है कि तुम बेवकूफ हो। कमांडर कहता है, असल बेवकूफ वो हैं जिन्होंने एक बीमार बच्चे को तख्ते बिठा दिया। यह सुनकर बादशाह बाल्डोन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पे लटकी हुई कमान को देखने लग जाता है। उधर सुल्तान करतगन के पास बैठे होते हैं और उसका हाल अहवाल पूछने के बाद कहते हैं, अमानत को बचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा है, तुम सुल्तान इस्माइल को बहिफाजत शाम ले जाओगे। जवाब में करतगन कहता है, नहीं हो सकता, शाम नहीं हो सकता। सुल्तान पूछते हैं, क्यों नहीं हो सकता, क्या कह रहे हो करतगन? तो करतगन कहता है, देखिए अजीम सुल्तान, छोटा सुल्तान ठीक और मुनासिब है, लेकिन आखिर को बच्चे के रगों में जंगी खून दौड़ रहा है। अब आपने गुमिश्तगन के सर कलम किया है, लेकिन उस जैसे लोग अभी भी खत्म नहीं हुए। जब तक मेरा भतीजा शाम में रहेगा वो हमें सुकून से नहीं रहने देंगे। मेरी आपा चाहती हैं कि उनका बेटा दाई अव्वल लादी की हिफाजत में हलब में रहे। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, हरगिज नहीं। करतगन कहता है, मेरे सुल्तान जलाल का मुजाहरा ना करें, जरा रुकें और मेरी बात सुनें। जब तक छोटे सुल्तान हलब में रहेंगे, हलब और मोsul में मौजूद जंगी अमीर खुद को महफूज महसूस करेंगे। आप शाम में उनके शर से महफूज होकर हुकूमत करेंगे। बोरो भी कहता है, करतगन ठीक कह रहा है भाई, सुल्तान हमारे सर के ताज हैं, लेकिन उनकी तरफ मंसूब की गई बगावत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। खासतौर पर अगर मलिक मियोदोद के बेटे बागी हूँ और झगड़ा शुरू कर दें क्योंकि आप जंगी नहीं है तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम हक जानिब हो, ऐसा नहीं है कि मैं इस बारे में सोच नहीं रहा, लेकिन तो करतगन एकदम से कहता है, सलाहुद्दीन उनकी माँ यही चाहती हैं, मुझे इजाजत दें कि मैं अपने बांजे को हलब ले जाऊं। इधर कमांडर विलियम से कहता है, फौज बहुत सी शिकस्तों से थक चुकी है, हमें फतह की जरूरत है और उसके लिए हमें एक हकीकी बादशाह की जरूरत है, नौजायद बच्चे की नहीं। तो कमान उठाए बाल्डोन सामने आते हुए कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं कुछ का बादशाह हूँ। ये कहते साथ ही बाल्डोन तीर छोड़ता है और कमांडर को मौत के घाट उतार देता है। यह देखकर विलियम बहुत खुश होता है। बाल्डोन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं बादशाह के तौर पर तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तलवारें नीचे रख दो, मगर सिपाही कहता है, आप हमें ऐसे हुक्म नहीं दे सकते। ये सुनते साथ ही विलियम और मार्कोस अपने सिपाहियों के साथ उन पर टूट पड़ते हैं और पल भर में गद्दारों को मार दिया जाता है। विलियम बादशाह के पास आकर पूछता है, इज्जत माँ बाप कैसे हैं? बाल्डोन विलियम से पूछता है, इन्होंने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? तो विलियम कहता है, हर फौज के अंदर कुछ बागी होते हैं, आप ठीक हैं, यही अहम है। वो आपको पकड़ के कहाँ ले गए थे, आप कैसे बच निकले? तो बाल्डोन कहता है, मास्क पहने हुए एक आदमी ने मेरी मदद की, मैं उसकी बदौलत बच गया। विलियम पूछता है, क्या उसने आपको नाम बताया? तो बाल्डोन कहता है, आइए कुछ की तरफ वापस चलते हैं। उधर बोरो सुल्तान से कहता है, हम पे यकीन करें, यही बेहतरीन है। सुल्तान के हाँ में सर हिलाने पर करतगन कहता है, अब मैं चलता हूँ। मगर सुल्तान कहते हैं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, भाई बोरा को साथ ले जाओ, वो मलिक मियोदोद का मावन था और हिफाजती दामाद के बारे में जानता है। करतगन हुक्म बजा लाते हुए वहाँ से चला जाता है और सुल्तान बोरो से कहते हैं, हम शाम की तरफ वापस लौटेंगे, सबको खबर पहुंचा दो। फिर उदास होते हुए कहते हैं, मैं अपने सुल्तान की याद को अपने करीब रखना चाहता था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। उधर मारिया बालेन से कहती है, बालेन आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपने सबिला को खो दिया, लेकिन हमारे हाथ में इससे भी ज्यादा अहम चीज है, ये मुकद्दस शहर कुद्स। अगर लाडगाय बादशाह का ताज पहनता है तो कुद्स मुकम्मल तौर पर रोम के कब्जे में चला जाएगा। बालेन उससे पूछता है, आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो मारिया कहती है, क्या आप बाल्डोन का सुराग नहीं तलाश कर सकते? अगर हम उसे ढूंढ लें। बालेन एकदम से कहता है, बस बहुत हो गया, ये मुकद्दस शहर आपके हाथों जहन्नुम का गड़ा बन गया, जहाँ फितने और खौफनाक चालें चली जाती नहीं। मारिया कहती है, लेकिन लाडगाय हमारा मुश्तरका दुश्मन है। बालेन कहता है, उन्हें जहन्नुम के इस गड़े में दफन कर दें जो आपने अपने हाथों से खोदा है। उन्हें देखते हुए चातरियों लाडगाय से कहता है, ऐसा लगता है कि मारिया की न्याय हाथ बनाना चाहती है। तो लाडगाय कहता है, दोनों से जान छुड़ाना बेहतर है। ये कहते साथ ही उन दोनों की जानिब बढ़ता है तो सबिला उसके रास्ते में आते हुए कहती है, मैंने वो कर दिया जो तुमने कहा था, मैंने तुमसे शादी की, तुम बालेन को हाथ भी नहीं लगाओगे। जवाब में लाडगाय कहता है, बिल्कुल शहजादी, मैं अपने वादे पे कायम रहूंगा। ये कहते साथ वो आगे बढ़ता है। उधर हिजर बहुत परेशान अपना सामान बांध रही होती है। भाई बोरा आकर कहता है, काफिला रवाना होने के लिए तैयार है। भाई बोरा के जाते साथ ही करतगन वहाँ पे आता है और कहता है, रास्ते टकराने से लेकर अब रवानगी का वक्त है। आ हिजर खातून, आप उदास
आ सक रही हैं? तो हिजर कहती है मेरा सामान हमेशा दरवाजे पर और मैं जाने के लिए तैयार रहती हूँ। करातेगन कहता है फिक्र ना करें, हम कभी यहाँ कभी वहाँ अपनी सांसें ज़ाया करते रहते हैं, हम कभी रोजी की मुतलाशी होते हैं और कभी मोहब्बत के। हिजर पूछती है हुजूर के शाम में क़याम का कोई इम्कान नहीं? करातेगन नफी में सर हिलाता है और कहता है छोटे सुल्तान की खातिर यही बेहतर होगा हिजर खातून। हिजर कहती है आपने हमेशा हमारी हिफाजत की है, अल्लाह आपसे राजी हो। तो करातेगन कहता है आपको जब भी जरूरत पड़े आप खबर भेजें, मैं उठता हुआ आपके पास आ जाऊंगा। ये कहते साथ वो शहजादे इस्माइल के पास जाता है और उससे प्यार करता है। कुछ में लड़गाई मारिया और बालेन के पास आता है और कहता है चातियों को पकड़ने में जो सारी कोशिश तुमने लगाई अफसोस सब बेकार गई है कौंत बालेन। बालेन कहता है तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, लेकिन कुछ तुम्हारी मौत बनेगा। लड़गाई कहता है जल्द ही मेरी ताजपोशी की तकलीफ होगी और फिर मैं कुछ का बादशाह बन जाऊंगा और मेरी बीवी सबीला कुछ की मलका बन जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें अपना नाम साफ करने का मौका दूंगा अगर तुम मेरी शरायत कबूल कर लो तो। मारिया कहती है हमारे मुस्तकबिल के बादशाह की शरायत का अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं है, क्या आप हमें कुछ में नहीं देखना चाहते? तो लड़गाई उससे कहता है मैं आपकी फौरी समझ से बहुत मुतासिर हूँ मारिया, आपने ठीक समझा, कुछ को छोड़ दें आप दोनों और खुद को अपने लगाए गए इल्जाम से बरी करवा लें। अगर आप जिंदा रहो तो ये आपकी जीत है मेरे अंदाजे के मुताबिक। तुम्हारे पास कुछ को अलविदा कहने के लिए 2 दिन हैं, इनसे लुत्फानंदोज हूँ। ये कहते साथ ही लड़गाई पलट जाता है और वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। कैरिक में मैला मुंह धो रही होती है और उस लम्हे को याद करती है जब उसने चातियों से कहा था मेरे दिल का एक ही मालिक है और उसका नाम है सलाहुद्दीन। इस ख्याल के बाद कमांडर उसके पास आता है तो मैला उससे कहती है मेरे दरवाजे पर मुहाफिज बिठाई जाए, मेरी इजाजत के बगैर ना कोई खादिम ना ही कोई रईस दाखिल होने पाई। कुछ में चातियों लड़गाई के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है मैं आपकी तरफ से खुश हूँ मुस्तकबिल के बादशाह, मेरा कैरिक में एक छोटा सा काम बाकी है, वो कौन मैला अपने माल की कीमत अदा करेगी। तो लड़गाई उससे कहता है मुझे उम्मीद है कि आप वो नहीं सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ चातियों। मैला मर जाएगी तो मैला की मौत से कैरिक में अफरा तफरी फैल जाएगी, मैं अपने इक़्तिदार के पहले दिनों में इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना चाहता। चातियों गुस्से से कहता है लड़गाई मैला ने मुझे धोखा दिया है। तो लड़गाई उससे कहता है कैरिक जाकर मैला से इंतकाम लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, ताजपोशी की तकलीफ तक तुम मेरे साथ रहोगे। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि शाम में सुल्तान का दीवान लगा होता है। काजी फाजिल कहते हैं आपने सुल्तान इस्माइल को बाहिफाजत हलफ भेजकर एक अजीम फितने को रोक दिया है मेरे सुल्तान, और चूंकि हमने गुमुश्तगिन जैसे ताउन से भी निजात हासिल कर ली है तो अब हम कैरिक की तरफ पेशकदमी कर सकते हैं। बोरो कहता है दरमियानी रुकावट को हटाकर शाम को कायरा से जोड़ दिया जाए, क्या ये ठीक नहीं मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं तैयारी जारी रखें, हमारे पास अभी भी मुहावसे का वक्त है, लेकिन हमें कैरिक से पहले शाम को महफूज करना होगा। बोरो पूछता है क्या आपको शाम के आसपास कोई खतरा नजर आ रहा है? जवाब में सुल्तान कहते हैं शाम के करीब तरीन सुलेबी किला बैतुल हजान है। सुलेबी सुरमाओं और बादशाह मारलेक ने सुल्तान नूरुद्दीन की तमाम तंबीहात के बावजूद किले की तामीर शुरू की और उसे मुकम्मल किया। सुरमाओं ने यूरोप से आने वाली इमदाद से किले को मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल की। काजी फाजिल पूछते हैं क्या वो वाकई शाम पर हमला करने की जुर्रत कर सकते हैं? तो सुल्तान कहते हैं मुझे यकीन है कि जैसे ही हम शाम को मुआवजे के लिए छोड़ेंगे वो हरकत करना शुरू कर देंगे जो शायद कैरिक के मुआवजे तक जारी रहेगा, इसलिए जब कुछ सफरा तफरी का शिकार है तो हमें उन्हें एहतियात से पकड़ना चाहिए, यह मौका फिर नहीं आएगा। एथिस फौजी कैसे हैं? जवाब में एथिस कहते हैं गुमुश्तगिन ने थोड़े अरसे में ही फौज का हाल बिगाड़ दिया है मेरे सुल्तान, निजाम को बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा। सुल्तान कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, हम उनके साथ पेशकदमी करेंगे जिन पे हम भरोसा करते हैं। गुकबरो कहता है मेरे पुराने वफादार सिपाही जो जानते थे कि मैं जिंदा हूँ, मेरे सुल्तान शाम में आए हैं, वो सब आपके हुक्म के पाबंद हैं। करातेगन कहता है मेरे सुल्तान बुरो कबीले के सिपाही भी आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। सुल्तान कहते हैं जरूरत भी इसी की है, हम मिलकर मुश्किल को आसान कर देंगे। कुछ में लड़गाई सबीला से कहता है चेहरे पर मौजूद उदासी आपकी खूबसूरती को छुपा नहीं सकती, जैसे मेरे जज्बात आपके लिए हैं सबीला, कुछ के लिए मेरा जज्बा उतना ही सच्चा है। आप और कुछ इस दुनिया में आपस में जुड़े हुए जन्नत के 2 बाग हैं और मैं उस बाग में दाखिल हो जाऊंगा। ये कहते साथ ही लड़गाई उसके मस्जिद पास होने की कोशिश करता है तो सबीला उसे पीछे धकेल देती है और गुस्से से कहती है मेरे पास भी मत आना। इसलिए लड़गाई का कमांडर परेशानी के आलम में वहाँ आता है। लड़गाई गुस्से से कहता है क्यों आई हो, क्यों परेशान कर रहे हो? तो कमांडर कहता है मुझे अफसोस है जनाब, लेकिन एक बहुत जरूरी। सुल्तान के दीवान में खलील दाखिल होता है और कहता है खलीफा जद की तरफ से खत है। सुल्तान खत खोलकर पढ़ते हैं और गुस्से से कहते हैं खलीफा का कहना है कि मैं जंगी खानदान से नहीं हूँ और इसलिए उसने मुझे एजाजी लिबास भेजने से इनकार कर दिया है। उसका यह भी कहना है कि ये सूरत हाल मलिक मौदूद के बेटों के लिए तकलीफ का बाइस बन रही है। मुख्तसरन उसका ख्याल है कि जो हुक्म वो भेजेगा उससे आलम इस्लाम में नया फितना पैदा होगा। काजी फाजिल कहते हैं यह खलीफा का मनसब हमारे बेहतरीन मुफाद में नहीं है। सुल्तान कहते हैं अगर खलीफा ये कहता है तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, ये रास्ता चाहे बहुत दुश्वार हो, आखिर में फतह नागुज़ीर होगी। कुछ में बाल्डोन तख्त की जानिब देख रहा होता है। चातियोन विलियम से पूछता है क्या हुआ है विलियम, इज्जत में आप कहाँ थे? तो विलियम कहता है मैंने सुना था कि ये अजीज जाज की खानकाह में थे। जब मैंने सुना और इन्हें लेने गया तो फौजियों के गिरोह ने मुझे रोका, लेकिन बादशाह नमदार हुए और बड़ी हिम्मत से एक फौजी को मार डाला। चातियोन से कहता है आप और बालेन के अपने आप को साफ करने की कोशिश बहुत दिल को छूने वाली है विलियम। इसलिए में सबीला और लड़गाई वहाँ पे आते हैं। बाल्डोन को देखकर सबीला बहुत खुश होती है और उसका हाल देखकर पूछती है बाल्डोन क्या हुआ है, तुम्हारे साथ ये किसने किया है? बाल्डोन कोई जवाब नहीं देता। सबीला गुस्से में लड़गाई को देखती है और चिल्लाते हुए कहती है फौरी तौर पे हकीमों को पैगाम भेजो। मारिया कहती है वो फौजी जिन्होंने बादशाह को अगवा करने की जरूरत की, क्या आप जानते हैं कि उन्हें किसकी तरफ से हुक्म मिला था विलियम? तो विलियम कहता है नहीं, बदकिस्मती से उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। लड़गाई बाल्डोन से कहता है आपको दोबारा महल में मिलना एक बहुत बड़ा शर्फ है, अच्छी बात है कि उन्हें वो मिल गया जिसके वो मुस्तहिक थे। मारिया कहती है जब तक ये सामने ना आ जाए कि ये किसने किया है और किसने करवाया है तो इसका मतलब है कि खतरा बाकी है ना लड़गाई? लड़गाई कहता है जब तुम्हारा मसला नहीं है मारिया, अनकरीब तुम वाकई महल छोड़ दोगी। जवाब में मारिया कहती है चूंकि हमारा बादशाह वापस आ गया है तो मुझे इनके पहले मुशीर के तौर पे यहाँ रहना चाहिए। बाल्डोन की नजरें मुसलसल तख्त पे जमी होती हैं तो सबीला परेशान होते हुए कहती है बाल्डोन मेरे भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, क्या हुआ है, बोलो। तो चातियोन कहता है मैंने कभी ऐसा कहने की तोको नहीं की थी, लेकिन इस बच्चे की हालत मुझे बहुत खौफजदा कर रही है। सबीला गुस्से से कहती है होश में आओ चातियोन, ये कोई बच्चा नहीं यहाँ का बादशाह है। बाल्डोन पलटते हुए कहता है अभी मैं कुछ वक्त आराम के लिए जाऊंगा,
होगा, आप लोग सबको जमा करें, मुझे कुछ कहना है। ये कहते साथ ही बाल्डोन चला जाता है। इधर सुल्तान कहते हैं हमारा खलीफा अब ये समझता है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। काजी फजल कहते हैं हर वो शख्स जिसने अपने दिल में सुलेबियों की नाइंसाफी को छुआ और महसूस किया वो आपकी कदर कीमत को जानता है मेरे सुल्तान। उम्मत ने आपको बादशाही की चादर सौंपी है, खलीफा की चादर न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुल्तान कहते हैं वो कहते हैं कि हक की राह पर चलने वाला कभी नहीं थकता, हम उस राह पर चलते रहेंगे जिसे हम सही समझते हैं। हमारी मंजिल बैतुल हज़ान है, हम उस जगह जाएंगे जहाँ पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आंसू बहाए थे। हमारी गज़ा मुबारक हो, हर कोई अपने अपने फरीजे पे वापस जाए। बाकी सब चले जाते हैं और सुल्तान करतगन को रोक लेते हैं। एबलिन में बालिन मार्कोस से कहता है बाल्डोन का इक़्तिदार से इल्हाक लाड़ गया कि इक़्तिदार पे कब्जा करने की उम्मीदें खत्म कर देता है। तो मार्कोस कहता है बादशाह बाल्डोन की हालत में कुछ अजीब था जिस पर मैं बात नहीं कर सकता। बालिन कहता है क्या ये बिल्कुल फितरी नहीं है जब हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जिससे वो इतनी छोटी उम्र में गुजरा है। इसलिए सिपाही आता है और खत देते हुए कहता है जनाब ये कुछ से पैगाम है। बालिन खत खोलकर पढ़ता है और कहता है मुझे बादशाह बाल्डोन ने कुछ में बुलाया है। कुछ में हकीम बाल्डोन का इलाज कर रहा होता है। फिर तबीब मारिया से कहता है थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जज़ा में से और भी थका देगा, जिस्म पे जख्म के निशान साफ नजर आएंगे। मारिया पूछती है इसके दिमाग का क्या होगा, क्या यही बीमारी इसके दिमाग पे भी असर करेगी। तबीब कहता है ऐसे मामलात कम ही होते हैं। ये सुनते साथ ही मारिया इशारा करती है और तबीब चला जाता है। बाल्डोन आंखें खोलता है तो मारिया पूछती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको किसने बचाया, आपके चेहरे पर यह जख्म कैसे लगे। बाल्डोन कहता है मैंने वही किया जो जज ने कहा, मैंने अपनी बीमारी से ढाल के तौर पर खुद को मुसल्ला किया और उन खारदार तारों को उबूर किया जिसे कोई उबूर नहीं कर सकता था। मारिया पूछती है इज्जत माब ये जज कौन है। तो बाल्डोन कहता है एक बहुत ज़हीन आदमी जिसने अपने चेहरे के आधे हिस्से पे लोहे का मास्क पहन रखा है। मारिया परेशान हो जाती है तो बाल्डोन उससे पूछता है क्या आप उसे जानती हैं। तो मारिया कहती है इज्जत माब नहीं, लेकिन मैं उससे मिलना पसंद करूंगी। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है। मारिया के जाते साथ ही वो शख्स बाल्डोन को अपने सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। बाल्डोन उसे कहता है मेरा ख्याल है कि आपको महल वालों के सामने आ जाना चाहिए, उन्हें मेरा यकीन करना चाहिए। जब कोई मुझ पर यकीन नहीं करता तो मैं सलाउद्दीन को कैसे शिकस्त दूंगा। वो शख्स कहता है आपको उन्हें कुछ ऐसा पेश करना होगा जिससे वो लोग जो आज आप पर यकीन नहीं करते वो कल आपके सामने घुटने टेकें। बाल्डोन पूछता है क्या बात कर रही हो। तो वो शख्स कहता है हम इसे जल्द ही मिलकर तलाश कर लेंगे। उधर सुल्तान के सामने करतगन गुस्से से कहता है ओ मेरे खुदाया क्या ये जासूसी का वजीफा है, ये क्या है मेरे सुल्तान, मैं इस काम में राहत महसूस नहीं कर रहा। मुझे ईमानदारी से बताएं क्या आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं। मैं कुछ में अकेला क्या करूंगा। सुल्तान कहते हैं अलबेज को अपने साथ ले जाओ, माइज और एलिसा तुम्हारा साथ देंगे। हमारे बैतुल खजान में जाने की खबर तेजी से फैल जाएगी, तो इसलिए मैं कुछ में होने वाली हर चीज को दुरुस्तगी और फौरी तौर पर जानना चाहता हूँ। मैं ये काम करने के लिए तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। करतगन अजीब मुंह बना के खड़ा होता है और ये अल्फाज सुनते साथ ही एकदम से खुश होते हुए कहता है आप सही कहते हैं, आप यहाँ मेरे सिवा किस पे भरोसा कर सकते हैं भला। तो सुल्तान कहते हैं बस ऐसा काम ना करना जैसा कि तुमने पिछली बार किया था, जो मालूमात हमें तुमसे मौसूल होंगी बहुत अहम होंगी। करतगन कहता है सुल्तान फिक्र ना करें, मैं जासूसी का माहिर हो गया हूँ, आपको मुझसे बेहतर कोई जासूस नहीं मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सारे कुछ से बात करूंगा और मतलूबा मालूमात हासिल करूंगा। कुछ में लड़ गया कहता है लोहे के मास्क वाला आदमी है ना, मैं देख रहा हूँ कि हमारा बादशाह न सिर्फ अपनी जिस्मानी सेहत बल्कि ज़हनी सेहत भी खो चुका है। सबीला उसे कहती है अगर जो कुछ वो कह रहा है वो सच हुआ तो। लड़ गया कहता है शहजादी मजाक ना करो, मुझे हंसाओ मत, ये बच्चा बिल्कुल पागल हो गया है बिल्कुल। सबीला गुस्से से कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ बहुत मुश्किल चीजों से गुजरा है, बस ये वाकई तकलीफ दे है कि जिसने उसके साथ ऐसा किया मैं उससे हिसाब नहीं ले सकती। चातलियन कहता है शहजादी मैं सिर्फ लड़गई से इत्तफाक कर सकता हूँ, बहरहाल हमने यहाँ बादशाह की हालत देखी है। लड़गया कहता है मेरी ताजपोशी की तकलीफ जल्द अज जल्द होनी चाहिए। ये सुनकर विलियम कहता है हकीकी बादशाह के जिंदा होने तक ये मुमकिन नहीं। ये सुनकर लड़गया कहता है क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारा बादशाह सिर्फ एक मुर्दा शख्स है। अगर शाम का सुल्तान सुन ले कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है तो वो अपनी फौज जमा करेगा और कुछ की तरफ बढ़ेगा, तब हमें सलाउद्दीन से कौन बचाएगा। क्या छोटा बादशाह बाल्डोन हमारी हिफाजत कर सकेगा। इसलिए में मारिया वहाँ पे आती है और कहती है बिल्कुल लड़गई, हमें बाल्डोन सलाउद्दीन से बचाएगा क्योंकि वो अपने बाप से ज्यादा ताकतवर बादशाह होगा। लड़गया कहता है क्या वो आपके मुज़ाहिका खेज ख्यालात के साथ ऐसा करेगा जो आपने उसके दिमाग में भरे हैं। तो मारिया कहती है अपने इरादे और मर्जी से बाल्डोन खारदार तारों से गुजरा है, उस कैद से फरार होने के लिए ऐसा आज़म किस में है बताएं जरा। इस्लामिक कमांडर आता है और कहता है शाम में हमारे जासूसों की तरफ से खबर है सलाउद्दीन ने बैतुल खजान के किले का मुहावजा करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और लड़गया कहता है जबकि वो शाम के तख्त पर बैठ गया है तो वो करीब तरीन सुलेबी किला छीनना चाहता है। देखते हैं कि हमारा बादशाह किले का दिफा कैसे करेगा। शाम में सुल्तान शम्स और फातिमा खातून के साथ बैठे होते हैं। फातिमा खातून कहती है मैला हमारे महल में मेहमान थी, उसने हमारा खाना खाया हमारा पानी पिया, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो सुल्तान कहते हैं जब मैं शाम के तख्त पर बैठा तो हालात बदल गए, क्योंकि कौन मैला जानती है कि मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मुझे कैरिक नहीं मिल जाता। शम्सा कहती है उसका मकसद मुख्तलिफ है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फातिमा खातून एकदम से पूछती है उसका मकसद क्या है बेटी। तो सुल्तान कहते हैं उसने जो कुछ किया उसकी कीमत अदा करेगी। शम्सा कहती है मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो इस जंग से कैसे बच गई, अगर तुम उसकी मौत की खबर लाते तो मुझे सुकून मिलता। इसलिए मैं शम्सा खांसने लग जाती है और खांसते खांसते आगे बढ़ जाती है। सुल्तान खड़े होकर पूछते हैं माँ शम्सा को क्या हुआ है। तो फातिमा खातून कहती है हमें इसे नेक शगुन समझना चाहिए, यह आज दूसरी बार हुआ है बेटा। ये कहते साथ ही फातिमा खातून भी चली जाती है। कुछ में बाल्डोन कहता है आपने उन मुश्किल दिनों के बारे में सुना है जिनसे मैं गुजरा हूँ, मैं खुशकिस्मती से अपने तख्त पर वापस आ गया हूँ और अपनी बादशाही पर हूँ। जिसने मेरे खिलाफ ये हरकत की है मैं वक्त आने पर उसे हिसाब लूंगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम सलाउद्दीन के खिलाफ मजबूत होंगे, हमारी तलवारें हमारे ईमान से चमकेंगी, बैतुल खजान सलाउद्दीन का अंजाम होगा। एबलिन से कौंत बालेन और विलियम आपके खिलाफ तमाम इल्जामात खत्म कर दिए गए हैं। यह सुनकर बालेन पूछता है लेकिन हकीम लतीफ के असल कातलों का क्या होगा। बाल्डोन वहीं पे उसे खामोश करवाते हुए कहता है कौंत बालेन मैं आपको बैतुल खजान किले के दिफा का हुक्म देता हूँ। कौंत चातलियन कैरिक में क्या सूरत हाल है। तो चातलियन कहता है कौंत मैला ने मुझे बहुत धोखा दिया है इज्जत माब, उसने सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे को अगवा किया और कैरिक को एक बेनकाब
खराब हदफ बनाया और मजीद ये कि मुझे मारने की कोशिश की। यह सुनकर बाल्डोन कहता है, आपके बादशाह के तौर पर मैं आपको जाती इख्तलाफात को एक तरफ रखने का हुक्म देता हूँ। आपको कुछ के सुलभी बादशाह के मुस्तकबिल के लिए कैरिक की ताकत को महफूज रखना चाहिए। आप कैरिक से भी बैतुल खजान की हिमायत के लिए फौज भेजेंगे। फिर लाड़गाई से कहता है, लाड़गाई में चाहता हूँ कि आप हमारी अजीम फतह के लिए फौज तैयार करें। लाड़गाई उसे कहता है, मुझे डर है कि कुछ गलत ना हो जाए इज्जत माब, हमारी फौज बहुत मुश्किल हालात में है। पे दरपेश कस्तों के बाद फौज का एतमाद खत्म हो गया है। बाल्डोन कहता है, उन्हें अपने शहर और अपने बादशाह के लिए लड़ना चाहिए। तो लाड़गाई कहता है, हमें अपनी फौज को एक नई जंग लड़ने के लिए कायल करने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत है। विलियम कहता है, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि लाड़गाई ठीक कहता है। तो बाल्डोन कहता है, वसाइल फराहम करना आपका काम है। लाड़गाई कहता है, अगर फौजी ना आए तो क्या करेंगे, क्या आप अकेले लड़ेंगे? बाल्डोन गुस्से में उठता है और उसके पास आकर कहता है, अगर अगली बार तुम ये भूल जाओ कि किससे बात कर रहे हो तो जान लो कि मैं तुम्हें ये याद दिलाने में किसी भी तरह से हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। मेरे अहकामात पे फौरन अमल किया जाए। ये कहते साथ ही बाल्डोन सुल्तान अपने साथियों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। फिर कराकोश से पूछते हैं, आपके पास एक मंजनीक थी, उसका नाम क्या था? तो कराकोश कहता है, मेरे सुल्तान दियो मंजनीक। सुल्तान पूछते हैं, क्या वो उन दीवारों को और दूसरी मंजनीकों को तबाह कर सकती है? तो कराकोश कहता है, सुल्तान दियो मंजनीक दीवारों को तबाह कर सकती है, लेकिन फ्रैंक वालों ने अपने किलों को मोटे पत्थर और चूने से मजबूत किया है। अब उन दीवारों को तबाह करने के लिए मंजनीक काफी नहीं है। यह सुनकर बोरो कहता है, तो तुम कह रहे हो कि किले को बाहर से तबाह नहीं किया जा सकता? हाँ। कराकोश कहता है, मुश्किल है ना मुमकिन नहीं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, हम मुश्किलात से भागते नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। हम किले की दीवारों को किसी और तरीके से तबाह करेंगे, सुरंगें खोद कर। जंगल में आगे बढ़ते हुए बालिन मार्कोस से कहता है, जब सलाउद्दीन ने चाचुन को मेरे हवाले किया तो उसने वो काम किया जो वो कभी नहीं कर सकता था, और अब मुझे उसके खिलाफ बैतुल खजान किले का दिफा करना होगा। मार्कोस कहता है, हम ये कुछ के मुस्तकबिल के लिए करेंगे। बालिन कहता है, तुम ठीक कहते हो मार्कोस, सब कुछ के लिए है। इधर बाल्डोन चिल्लाते हुए कहता है, मैंने जब जंग को हुक्म दिया है तो फौजी कैसे अपनी तलवारें छोड़ सकते हैं? कैसे? कमांडर कहता है, क्योंकि उनके पास जंग लड़ने के लिए ना पैसे हैं और ना हौसला है। लाड़गाई कहता है, मैं अपने बादशाह के नाम पर आखिरी बार लड़ने का हुक्म देता हूँ। एक जीत सारी शिकस्तें बुला देती है। मगर कमांडर कहता है, आपके इस हुक्म पर टेम्पलर्स फौजी अमल कर सकते हैं लाड़गाई, लेकिन आप कुछ बादशाह के सरपरस्तों से तो नहीं कर सकते कि वो एक बीमार बच्चे के लिए मुकम्मल यकीन के साथ लड़ेंगे जितना अगर बादशाह मारलेक जिंदा होते तो उनके लिए लड़ते। सबीला गुस्से से कहती है, ये कैसी जुर्रत है, अपने बादशाह से किस लहजे में बात कर रहे हो? बाल्डोन चिल्लाते हुए कहता है, मुहाफिजो, इस शख्स को फौरन जिंदान में बंद कर दो। मगर कमरे के अंदर मौजूद मुहाफिज अपनी तलवारें फेंक देते हैं। बाल्डोन को बेबस देखकर लाड़गाई बहुत खुश होता है, जबकि विलियम, मारिया और सबीला बहुत परेशान हो जाते हैं। बाल्डोन बेबसी के आलम में तख्त पे बैठ जाता है। कमांडर उससे कहता है, जब एक सच्चा बादशाह इस तख्त पर बैठेगा तो हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, लेकिन उस वक्त तक कुछ की फौज एक भी जंग नहीं लड़ेगी। ये कहते साथ ही कमांडर चला जाता है और लाड़गाई अपने कमांडर से कहता है, तमाम गिरजाघरों में फौज के लिए चंदा खाने खोल दिए जाएं। विलियम परेशान होते हुए कहता है, बादशाह मेरी आंखों के सामने टूट रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो चात्योन कहता है, बीमार बच्चा अपने बाबा के लादे बोझ के नीचे दबकर मर जाएगा। बाल्डोन को मुरझाया हुआ देखकर मारिया शहजादी से कहती है, शहजादी सबीला, बादशाह सलामत बीमार लग रहे हैं, इन्हें इनके कमरे में ले चलते हैं। वो सब एकदम से बाल्डोन के पास जाते हैं। लाड़गाई के इशारे पर सबीला उसके साथ एक तरफ हो जाती है, जबकि बाल्डोन खुद ही चल पड़ता है। लाड़गाई सबीला से कहता है, बाल्डोन को तख्त से दस्तबरदार होने पर राजी करो, वरना आपके पास ना कुछ रहेगा और ना आपका भाई। सबीला कहती है, तुम इस तरह बोल रहे हो जैसे बाल्डोन को वहाँ कैद करने वाले और उसके मौजूदा हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। लाड़गाई कहता है, हमें माजी को पीछे छोड़ना होगा। मैं जानता हूँ कि आप बाल्डोन को सब कुछ बताने और मुझे धोखा देने के बारे में सोच रही हैं। आप ऐसा करने के लिए आजाद हैं, लेकिन आपको उसके नताइज के बारे में सोचना होगा। थोड़ी देर पहले कुछ फौज के कमांडर ने खुलेआम ऐलान किया कि वो आपके भाई बाल्डोन को बादशाह तस्लीम नहीं करता। फौज और टेम्पलर्स पे मेरा रसूख बहुत ज्यादा है। अगर तुम मुझे इस अफरा तफरी में कैद करने की हिमाकत करो तो हमारी फौज और हमारे छोटे बादशाह का अंजाम क्या बनेगा, सोच लो। अब ऐसी सूरत हाल में मुझे खदशा है कि बगावत हो सकती है। बाल्डोन को न सिर्फ तख्त से बल्कि उसकी जिंदगी से भी महरूम किया जाएगा। यह सुनकर सबीला बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ कराकोश सुल्तान से कहता है, जैसा कि मैंने कहा मेरे सुल्तान, अगर हम ज़ेरे ज़मीन से दीवारों के संगे बुनियाद तक पहुंच जाएं और ताकतवर धमाके खेज मवाद रखें तो हम इंशाअल्लाह दीवारों को गिरा देंगे। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, हम किले के नीचे से दाखिल होकर ऊपर से निकलेंगे। बोरो गुब्बरो बोजोक, आप तीनों खुदाई खत्म होने तक किले पर तीरों से हमले करते रहेंगे। मुझे भी उसूल के मुताबिक एक ही काम करने को बचा है। मैं किले के कमांडर से मिलूंगा। ज़ाहिर है कि वो किला हवाले नहीं करेगा, लेकिन हम बहरहाल अमन का हाथ बढ़ाएंगे। किले में खबर भेजो ताकि हमारा वक्त जाया ना हो। नाज़रीन, इसके बाद हम बैतुल खजान किले में देखते हैं बालेन कमांडर और मार्कोस के साथ दिफा का मंसूबा तरतीब दे रहा होता है और कहता है, हम फौजियों को किले के अंदर 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसलिए सिपाही आता है और कहता है, जनाब सुल्तान सलाउद्दीन ने अपने सिपाहियों के साथ किले के करीब पड़ाव डाला है। सिपाही चला जाता है और बालेन कहता है, हमारा पहला मकसद मुआवजे को ज्यादा से ज्यादा तूल देना है। हमारी दीवारों की मजबूती हमें वो वक्त देगी जिसकी हमें जरूरत है, और इसके अलावा फौजियों में से बेहतरीन तरंदाजों का इंतखाब करो, उन्हें उन मुकामात पे खड़ा करो जिनके बारे में मैंने बताया था। सलाउद्दीन के सिपाही कभी भी दरवाजों के पास नहीं आने चाहिए। कुछ में लड़गाई कहता है, जबकि सलाउद्दीन कदम ब कदम कुछ के करीब हो रहा है तो फौज के अंदर किसी भी किस्म की बगावत कुछ को हमेशा के लिए खो देने के मुतरादिफ हो सकती है। तो मारिया उसे कहती है, मुस्तकबिल के बादशाह के तौर पर आपके पास जरूर कोई मंसूबा होगा। यह सुनकर लड़गाई कहता है, आप ठीक कहती है मारिया, फौरन दिफाई दस्ते को तैयार करो। चात्योन, तुम पैतरों को दिफाई मदद दोगे? चात्योन कहता है, यकीनन, लेकिन यकीन रखेंगे ये बहुत मुश्किल होगा। ये कहते साथ ही चात्योन जाने लगता है तो लड़गाई कहता है, एक और बात, कहीं बेवकूफ बनकर मैला से बदला लेने की कोशिश ना कर लेना, हम सबको मुतैद होना होगा। यह सुनते साथ ही चात्योन चला जाता है और लड़गाई कहता है, मारिया, जहाँ तक आपका ताल्लुक है आपके पास कफारा अदा करने का बेहतरीन मौका है। बजंतीन की हिमायत कुछ में आपकी हिफाजत को यकीनी बनाएगी। तो मारिया उसे कहती है, यकीन रखें कि मैं कुछ के लिए अपनी ताकत से ज्यादा कुछ करूंगी। ये कहते साथ ही मारिया भी चली जाती है और लड़गाई सबीला के पास आकर कहता है, फिक्र ना करें शहजादी, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं कुछ को टुकड़े टुकड़े नहीं होने दूंगा। उधर मास्क वाला शख्स बाल्डोन के पास खड़ा होता है। किताबों में कुछ तलाश करते हुए बाल्डोन कहता है, हम
हम क्या तलाश कर रहे हैं? तो वो शख्स कहता है कुछ ऐसा जो आपके इख्तियार और ताकत को बढ़ा देगा, वरना ये लोग तुम्हें इस तख्त पे ज्यादा देर नहीं बैठने देंगे। ये कहते साथ वो एक कागज बाल्डोन के सामने रखते हुए कहता है अब इस कागज पे गौर करो। बाल्डोन उस कागज को देख रहा होता है कि सिबिला वहाँ पे आती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बाल्डोन कहता है हम उस चीज की तलाश कर रहे हैं जो मुझे दोबारा बादशाह बना देगी। नाज़रीन, ये मास्क वाला सिर्फ एक अक्स है जो बाल्डोन को महसूस हो रहा है। सिबिला उससे पूछती है किसके साथ? तो बाल्डोन कहता है उस शख्स के साथ जिसने तहखाने से निकलने में मेरी मदद की, मतलब कि जॉर्ज। सिबिला कहती है बाल्डोन इस नाम का कोई है ही नहीं। जवाबन बाल्डोन खड़े होकर गुस्से से कहता है बिल्कुल है, वो वाइट शख्स जो मुझे सच्चा बादशाह बनाने की कोशिश करता है। सिबिला उसे कहती है बाल्डोन तुम ठीक नहीं हो, फौज बगावत कर रही है, अवाम बदहाली का शिकार है, इस तरह चलने से हम सिर्फ बादशाहत को नहीं बल्कि एक दूसरे को भी खो देंगे। तो बाल्डोन उससे कहता है शहजादी पुरस्कून हो जाओ, मैं तुम्हारे तमाम मसाइल हल कर दूंगा। सिबिला गुस्से से कहती है तुम्हारे पास हकाइक को देखने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्या तुम नहीं समझते बाल्डोन? हर कोई तुमसे तख्त लेने के चक्कर में है और तुम एक ख्याली दुनिया में हो। बाल्डोन भी गुस्से से कहता है बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। यह सुनते साथ ही सिबिला चली जाती है। उधर कमांडर बालेन के पास आकर कहता है कौन बालेन? सुल्तान सलाउद्दीन की तरफ से खबर है, वो किले का दिफा करने वाले कमांडर के साथ मुलाकात की दरख्वास्त करते हैं, अगर आप चाहें तो मैं भी किले के कमांडर के तौर पर मुलाकात कर सकता हूँ। बालेन कहता है नहीं नहीं, ये काम मेरा है, मैं उससे मिलूंगा। इधर सुरंग खोदी जा रही होती है, कराकोश तेजी से काम कर रहा होता है और आगे बढ़ते हुए एक्सिस के पास आकर कहता है हम जब दीवारों के नीचे पहुंचेंगे तो मैं इशारा दूंगा, हम बुनियाद को कमजोर करके आग भड़काने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर एक्सिस इदरीस से कहते हैं मेरे बहादुर, अब बारी तुम लोगों की है, तुम्हारा काम बहुत अहम है, मेरी बात गौर से सुनो। कुछ में कर्तगन और अल्बेस बेस बदले माइज और एलिसा के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। एक तरफ बजंतीनी सिपाहियों को जमा होता हुआ देखकर कर्तगन कहता है यहाँ इतने फौजी क्यों जमा हुए हैं? तो एलिसा कहता है ये एक सुलभी हरबा है, जब पैसा खत्म हो जाए तो कलीसा में गुनाहों के कफारे के तौर पर रकम जमा करते हैं, हर गुनाह की एक अपनी जबरदस्त कीमत होती है। कर्तगन कहता है अरे ये तो बिजनेस है, मेरे जहन में ये क्यों नहीं आया? ये तो शैतान के जहन में भी नहीं आया होगा। माइज कहता है अवाम पहले ही बदहाली में है, लगता है कि अब फौजियों की बारी है। अल्बेस कर्तगन से कहता है हम यहाँ से कीमती मालूमात हासिल कर सकते हैं। एलिसा कहता है हाँ लेकिन मोहतात रहने शक ना हो। बैतुल खजान किले के बाहर सुल्तान अपने साथियों के साथ खड़े होते हैं। तो बालेन को आता हुआ देखकर बोरो कहता है क्या ये बालेन नहीं है? यहाँ क्या कर रहा है? बालेन के पास आने पर सुल्तान कहते हैं तुमने वाज़ेह तौर पे खुद को बचा लिया है और अब फिर से मेरे सामने हो। यह सुनकर बालेन कहता है तुम्हें शिकायत करने का हक है, लेकिन बादशाह बाल्डोन ने जाती तौर पे मुझे इस किले के दिफा करने का काम सौंपा है। सुल्तान कहते हैं जिस बादशाह के बारे में मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, जिसका हमने पता लगा कर दिया वही बादशाह है ना? बालेन कहता है आपने जो कुछ किया मैं उसके लिए आपका मशकूर हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं इस जंग में आपके रास्ते में नहीं खड़ा हूँगा जो आपने हमारी बादशाहत की जमीनों पर शुरू की है। सुल्तान उससे कहते हैं किला बगैर खून खराबे के हमारे हवाले कर दो, जिस तरह मैंने चात्योन को तुम्हारे हवाले किया था। मगर बालेन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे बाल्डोन के नाम पर बैतुल खजान का दिफा करना होगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं तुम अपने साथ इंसाफी कर रहे हो बालेन, हो सकता है कि तुम अपने और हमारे रिश्ते के साथ इंसाफी कर रहे हो। यह सुनकर बालेन कहता है मेरी राय है कि फैसला करने में इतनी जल्दी ना करो। सुल्तान कहते हैं मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ किला हमारे हवाले कर दो बालेन। मगर बालेन कहता है मैंने कह दिया है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा। तो सुल्तान कहते हैं फिर यह मेरी गलती नहीं होगी, अपनी जान बचाने की कोशिश करो बालेन, क्योंकि जब मैं इस किले में दाखिल हूँगा तो मैं किसी पर रहम नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान अपने साथियों के साथ पलट जाते हैं और बोरो से कहते हैं तीरंदाजों को तैयार करो, जंग शुरू हो चुकी है। कुछ के चर्च में कर्तगन अल्बेस के साथ दाखिल होता है और पूछता है अल्बेस तुमने उन बूढ़ों को क्या सुनने के लिए दिया? वो फौरन तो नहीं उठेंगे ना? जवाब में अल्बेस कहता है ये मरहूम लतीफ की तरकीब है, वो सुबह तक नहीं उठ पाएंगे। कर्तगन खुश होते हुए कहता है अच्छा चलो जल्दी से काम करते हैं और बोरो से कहते हैं। ये कहते साथ ही कर्तगन वहाँ मौजूद अलमारी में छुप जाता है और अल्बेस उसे बंद कर देता है। फिर अल्बेस बाहर आता है और सिपाहियों से कहता है राहिब आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, हर शख्स अपने गुनाह के मुताबिक कुफारा अदा करेगा, वो ऐसे पाक हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जना हो। अल्बेस की बातें सुनने के बाद एक सिपाही आगे बढ़ता है और कर्तगन के सामने मौजूद अलमारी के दूसरे हिस्से में आ बैठता है। कर्तगन उससे कहता है बोलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ मौजूद हूँ। तो सिपाही कहता है मैं नहीं जानता कि कैसे शुरू करूँ। कर्तगन उससे कहता है जो भी राज मसला है वहीं से शुरू करो, मैं तुम्हारी परेशानियों को कम करने के लिए, तुम्हें पाक करने के लिए यहाँ हूँ। बोलो। बैतुल अहज़ान किले की बुलंदी पर से सुल्तान के साथियों पर तेल बरसाए जा रहे होते हैं। तीनों के साथ साथ नीचे आने वालों पे तेल भी डाला जा रहा होता है, मगर मुजामती बोरो अपने साथियों के साथ दरवाजा तोड़ाना लेकर दरवाजे की जानिब बढ़ रहा होता है। उन पे मुसलसल तेल बरसाए जा रहे होते हैं। बोजोक अपने साथियों के साथ जवाबी हमला करता है। सूरत हाल को देखते हुए बोरो कहता है वो बहुत मजबूत हैं, ये झड़पें हमें कुछ वक्त देंगी, लेकिन ये मुश्किल है। बोरो कहता है हम जितनी देर इन्हें यहाँ उलझाएंगे उतना ही अच्छा है, चलो चलो आगे बढ़ो। बुलंदी पर से आगे बढ़ते हुए बालेन सिपाहियों से कहता है हम किले को कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे हाथ ना कांपे, निशाना लगा के तीर मारो। बालेन के सिपाही तीर बरसाते ही चले जाते हैं। जवाबी हमले में बोजोक भी बहुत से काफिरों को मार गिराता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो किले के पहले दरवाजे तक जा पहुंचते हैं। ये देखकर सुलेबी ऊपर से पत्थर बरसाने शुरू कर देते हैं, मगर बोरो और उसके साथी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। यह देखकर बालेन कहता है जल्दी से उस तरफ जाओ, वो दरवाजे पे हमलावर हैं। यह सुनते साथ ही सिपाहियों की दौड़े लग जाती हैं। सलाउद्दीन ऐबी के साथी बारी बरकम दरवाजे को उठाने की कोशिश करते हैं और बिल आखिर वो दरवाजा खुल जाता है। वो दूसरे दरवाजे को तोड़ने के लिए दरवाजा तोड़ वाले के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर उस दरवाजे पे जर लगाते हैं। ऊपर से सुलेबी भी कभी पत्थर और कभी तीर बरसाते हैं। उधर अलमारी में सिपाही कर्तगन से कहता है बादशाही मारने के बाद सल्तनत मुसीबत में गिर गई, तख्त पे बच्चा बादशाह है और खजाना मुकम्मल तौर पे खाली है। कर्तगन पूछता है क्या हुआ, क्या उन्होंने आपकी तनख्वाहों में कमी की? सिपाही कहता है बिल्कुल, कमांडरों ने सिर्फ इस वजह से कहा कि बैतुल अहज़ान किले की मदद के लिए नहीं जाएंगे जिसे मुसलमानों ने घेरा हुआ है। कर्तगन पूछता है और आपको हार माननी पड़ी? हाँ। यह सुनकर सिपाही कहता है हाँ ये सच है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। हम आखिरत में अपने आका यीशु मसीह के चेहरे कैसे देखेंगे? मेरा दिल टूटता है। क्या हम सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए लड़ रहे हैं? कर्तगन कहता है हाँ तो और किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तुम्हारा दीन और तुम्हारा ईमान पैसा है, तुम और किसके लिए लड़ोगे? सिपाही कहता है मैं रातों को सो नहीं पाता जब मैं सोचता हूँ कि मुझे हुक्म ना मानने के
की सजा दी जाएगी। बराए करम मुझे बचने का कोई रास्ता बताएं। करातेगन कहता है बताता हूँ तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम कफारा अदा कर दो तो अच्छे से सो सकते हो। सिपाही पूछता है मुझे कितनी रकम अदा करनी है? तो करातेगन कहता है देखते हैं कि कफारे की किताब में आपके गुनाह की कीमत क्या है। कब्जा डकैती 150 सिक्के, अपनी बीवी बच्चों का माल खाना 200 सिक्के, जानवरों पे रहम ना करना 100 सिक्के, ये रहा हिसाब। लड़ाई से भागना तुम्हारे गुनाह की कीमत ये है, सुनो 400 सिक्के। सिपाही परेशान होते हुए कहता है मैं ये नहीं अदा कर सकता। करातेगन कहता है ठीक है 400 सिक्के बहुत ज्यादा हैं, चूंकि तुम्हारे कमांडर ने तुम्हें मजबूर किया है इसलिए कुछ रियायत लगा देते हैं। 200 सिक्के दे दो काफी हैं, साथ में रोजा रखो, रोजा हर बीमारी का इलाज है। चलो अब निकलो। ये सुनते साथ ही सिपाही अलबेस के पास आता है, कफारा अदा करता है और चला जाता है। अल-अहज़ान किले की बुलंदी पर से सुलभी मुसलमानों पे मुसलसल पत्थर बरसा रहे होते हैं। बोरो और गब्बरों की कोशिश भी तेजी से जारी होती है कि दरवाजा टूट जाए। पत्थरों के बाद सुलभी गर्म तेल उन पर डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी आड़ में आकर बहुत से सिपाही झुलस जाते हैं और पसपा होना शुरू हो जाते हैं। अपने पीछे सिपाही गिरते हुए देखकर बोरो कहता है हम पीछे हटेंगे। हुक्म मिलते साथ ही वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। पीछे हटते हटते भी वो कई जाने गंवा देते हैं। बोरो कहता है काश हम थोड़ा और वक्त लगा पाते। तो बोरो कहता है बालेन काफिर नहीं समझा होगा कि हमने उसकी तवज्जो हटाई है। बोरो कहता है फिक्र मत करो भाई, वो समझते हैं कि उन्हें वक्त मिल गया है, लेकिन वो बेफायदा कुछ की हिमायत का इंतजार कर रहा है। वो पीछे हट जाने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखने के बाद बालेन तेजी से अपने कमरे में आता है और कहता है जरूर कुछ गड़बड़ है, इतनी जल्दी पीछे हटना मामूल की बात नहीं है, हो सकता है कि वो किसी और हमले की मनसूबबंदी कर रहे हूँ। मार्कोस कहता है उन्होंने मंजनीक से अभी तक हमला शुरू नहीं किया। तो बालेन कहता है मुझे डर है कि जब हम समझ रहे हैं कि हम सलाउद्दीन का वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो वो हमें अपनी जान में फंसा लेगा। मार्कोस पूछता है क्या ये मुमकिन हो सकता है? बालेन कहता है आपके सामने सलाउद्दीन जैसा कमांडर हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किले को गिराने की उनकी कोशिशें इससे कहीं ज्यादा कमजोर हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है अगर मैं सलाउद्दीन की जगह होता तो मैं ऊपर से इतनी मजबूत दीवारों वाले किले में दाखिल होने के बजाय नीचे से गड़े खोदता। ये कहते साथ ही बालेन एकदम से समझ जाता है। तो मार्कोस कहता है यकीनन किले के नीचे से सुरंगें खोदी जा सकती हैं। जवाब में बालेन कहता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कमांडर बेहतरीन काबिल भरोसा सिपाहियों का इंतखाब करो जो इलाके को जानते हो और उन्हें बाहर भेज दो। उन्हें इलाके का जायजा लेना चाहिए। उन्हें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि सुरंगें खोदी गई हैं या नहीं। अगर वो सुराख तलाश करते हैं तो इसका मतलब होगा कि मैं दुरुस्त हूँ। ये सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है और मार्कोस पूछता है अगर आप दुरुस्त साबित हुए तो हम क्या करेंगे? बालेन कहता है मेरे जहन में इसके लिए भी एक मंसूबा है। कुछ में बाल्डोन उस कागज की जानिब बड़े गौर से देख रहा होता है तो मास्क वाला शख्स उसे सामने नजर आता है जो उसे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम्हें वो मिल गया है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। बाल्डोन खड़े होकर कहता है यहाँ जो लिखा है क्या ये हकीकत है? तो वो शख्स कहता है क्या मैं भी हकीकी हूँ? इसलिए मैं लाडगाई वहाँ पे आता है और बाल्डोन को एक तरफ इशारे करते हुए देखकर कहता है आप किससे बात कर रहे हैं बादशाह सलामत? तो बाल्डोन उसे कहता है ये वो मसाइल नहीं जो तुम समझ पाओगे लाडगाई। जवाब में लाडगाई कहता है और आप भी ऐसे मसाइल हैं जो नहीं समझ सकते बाल्डोन, इंतहाई अहम मसाइल। बाल्डोन कहता है मैंने आपसे कहा था कि जब आप अपने बादशाह से बात करें तो अल्फाज पर ध्यान दें लाडगाई। लाडगाई उसे कहता है यही चीज है जो तुम नहीं समझते, तुम बादशाह नहीं हो। जबकि खुदावंद खुद नहीं चाहते कि तुम बादशाह बनो, तुम कैसे बादशाह बन सकते हो? अगर वो चाहते तो तुम्हें जजाम की तरह नागवार बीमारी में मुब्तला ना करते बल्कि एक मजबूत और सेहतमंद जिस्म दे देते, बिल्कुल मेरी तरह। बाल्डोन चिल्लाते हुए कहता है जजाम मेरी ज़रा है, मैं इसके साथ और ज्यादा मजबूत हुआ हूँ। ये एक नेमत है जिससे मुझे नवाजा गया है। अब दफा जो मेरे कमरे से। लाडगाई तलवार पे हाथ रखते हुए कहता है मैं आपके लिए बहुत बेहतर चीजें सोच रहा हूँ। बाल्डोन गुस्से से कहता है मैंने तुमसे कहा कि मेरा कमरा छोड़ दो। जवाब में लाडगाई कहता है बादशाह बहुत जल्द ये फसाना खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द। ये कहते साथ ही लाडगाई चला जाता है। उधर कराकोश अपने साथियों के साथ सुरंग खोद रहा होता है। एचिस कहते हैं अगर काफिरों को मालूम हो गया कि हम खुदाई कर रहे हैं और वो आगे से खोदना शुरू कर दें तो क्या होगा? तो कराकोश कहता है हम इसीलिए सुरंगें गहराई में खोद रहे हैं, अगर वो मुखालिफ सिम से खोदने लग जाते हैं तो हम हवाओं के बहाव से महसूस कर लेंगे और उनके सुरंग तक पहुंचने से पहले अंदर से उड़ा देंगे। एचिस उसे थपकी देते हुए कहते हैं कराकोश तुम एक बहादुर आदमी हो। कराकोश आगे बढ़कर सिपाहियों से कहता है ये फतह आपकी होगी, चलो चलो जल्दी। यह सुनकर सिपाही पूरे जोश खरोश के साथ काम में लग जाते हैं। बाइट दो सुलेबी सिपाही सुरंगों का सुराख तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तलाश करते करते उनमें से एक को बिल्कुल छोटा सा सुराख दिखाई देता है। वो अपने साथी से कहता है ये रहा। कौंद बालेन अपनी पेशन गोई में दुरुस्त निकला। ये सुनते साथी उसका साथी बारूद को आग लगाता है और उसे नीचे फेंकते हुए कहता है मरो कमीनो। चर्च में करातेगन और अलबेस की लूट मार का सिलसिला जारी होता है। एक और सिपाही उस अलमारी में दाखिल होता है। करातेगन उससे पूछता है बोलो तुम्हारा कसूर क्या है? जवाब में सिपाही कहता है मैंने भूख की वजह से अपने पड़ोसी की मुर्गी चुराई, मैं मजबूर था। करातेगन पूछता है क्या बस यही कुछ किया? मतलब कि सिर्फ एक मुर्गी चुराई है या कुछ और भी? सिपाही के कम जुर्म और कम पैसे आते हुए देखकर करातेगन एकदम से मूड बदलता है और चिल्लाते हुए कहता है तुमने मुर्गी चोरी की? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि ये कितना बड़ा गुनाह है? कहाँ है वो मुर्गी? जवाब में सिपाही कहता है मेरे पिंजरे में, वो हर रोज अंडा देती है और अंडे बहुत लजीज होते हैं। करातेगन कहता है वो अंडे तुम्हारे गले में ही अटक जाएं, अंडे लेकर यहाँ आओ, फिर उससे अपने गुनाह का कफारा अदा करो। जैसे मेरे पास तुम्हारे गुनाहों के कफारे के सिवा कोई काम नहीं है। एक मुर्गी चोरी की है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाह के बारे में बताता हूँ। सबर। मुर्गी चोरी करने का जुर्माना 150 सिक्के है, लेकिन चूंकि तुम बदतमीज भी हो तो तुम 200 अदा करोगी। फिर अलबेस की जानिब देखते हुए कहता है इससे 200 सिक्के ले लो और यहाँ से बाहर फेंक दो। सिपाही डरते डरते कुछ सिक्के अदा करता है और चलता बनता है, मगर पीछे से करातेगन कहता है 200 वो बाकी सब डालता है और चला जाता है। अगला नंबर हिनोक का होता है। वो करातेगन के सामने बैठता है और कहता है मैं कौन चाप्योन का कमांडर हूँ। तो करातेगन उससे कहता है आप हमारे लिए काबिल एहतराम हो, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, अब बोलो बेटा तुम्हारा मसला क्या है? तो कमांडर कहता है मैं अपने गुनाह का इकरार करने नहीं आया, हम बैतुल अहज़ान में अपने भाइयों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मैं मुहिम के लिए जमा की गई रकम लेने आया हूँ। करातेगन पूछता है क्या ये तुम सबसे लोगे? तो हिनोक कहता है मैं तमाम गिरजाघरों में जाऊंगा। करातेगन उससे कहता है ये रास्ता लुटेरों से भरा पड़ा है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें लूट लिया जाएगा? हिनोक कहता है हमने एहतियाती तदबीर इख्तियार की हुई है, हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। करातेगन हैरानगी से पूछता है कोई और रास्ता? जहाँ तक
तक मैं जानता हूँ सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या कोई और रास्ता भी है? तो हिनोक कहता है, उसे पोशीदा रास्ता कहते हैं, यकीन रखें संदूक महफूज रहेंगे। करातेगन कहता है, मैं समझ गया बेटा, तुम्हारा रास्ता आसान हो और रब तुम्हारी हिफाजत करे। हिनोक उठता है, संदूक उठाता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद करातेगन अलमारी से बाहर आता है और कहता है वो संदूक लेकर चला गया, लेकिन उसने हमें ऐसी कीमती मालूमात दी है कि अलबेज जिसकी कीमत 1000 संदूक से भी ज्यादा है। हमें फौरन कारगाह पहुंचना होगा और ये मालूमात पहुंचानी होंगी। इसके साथ ही वो दोनों बाहर आते हैं और अलबेज वहाँ मौजूद सिपाहियों से कहता है, आज के लिए इतना ही काफी है, राहिब को आराम करने की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो करातेगन के साथ बैतुल अज़ान किले में मार्कोस बालिन के साथ आगे बढ़ रहा होता है और बालिन से कहता है, कौन हर चीज वैसे ही हो रही है जैसे मैंने तोको की थी। हमने सलाउद्दीन के सुरंगों के मंसूबे को नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ सुरंग में काम तेजी से जारी होता है, इसलिए मैं बोरो क्राकोश के पास आता है तो क्राकोश कहता है, अल्लाह का शुक्र है मंसूबा काम कर गया, हमने दुश्मन को चकमा दे दिया। ये कहते साथ वो समय को याद करता है जब सुल्तान ने कहा था हमें उन्हें धोखा देना होगा। असली सुरंग को छुपाने के लिए हमें उन्हें सतह पर एक और सुरंग दिखानी होगी और ये काम क्राकोश करेगा। अगले मंजर में अजीज ने इदरीस से कहा था, जैसा कि क्राकोश ने कहा, हम महल के पास लोहे की सलाखें रखेंगे और सुराख करेंगे, तब दुश्मन सोचेगा कि असल सुरंग यही है। और फिर हम देखते हैं कि इदरीस ने जंगल में एक आले के जरिए सुराख कर दिए थे। इन ख्यालात के बाद गुगबोरो कहता है, शाबाश क्राकोश, हमने उन्हें ये यकीन दिलाया है कि हमारी असल सुरंग वहीं पे मौजूद है। तो क्राकोश कहता है, अब चलो अपना काम मुकम्मल करते हैं, हम तकरीबन सुरंग के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही वो सब कामकाज में लग जाते हैं। कैरेक में कमांडर मैला के कमरे में आता है तो मैला गुस्से से कहती है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे परेशान ना करना? तो कमांडर कहता है, मोहतरमा चाफियोन आया है, वो कैरेक के तमाम सिपाहियों को जंग में ले जाने का हुक्म लाया है और आपसे मिलने के लिए तख्त वाले कमरे में इंतजार कर रहा है। यह सुनकर मैला को बहुत गुस्सा आता है और वो चल पड़ती है। कुछ में बाल्डोन उस कागज की जानिब देखते हुए मास्क वाले शख्स से पूछता है, क्या मैं वाकई इसे तलाश कर सकता हूँ? तो वो शख्स कहता है, आपको वाकई ये मिल जाएगा, बाहर मत देखें, अपनी रूह के अंदर झांकें। बाल्डोन पूछता है, जब मैं अपने आप को देखूं तो मुझे क्या चीज नजर आनी चाहिए? तो वो शख्स कहता है, क्या चीज बादशाहों को बादशाह बनाती है? बाल्डोन कहता है, क्या ये मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून है या ये सिपाहियों की वफादारी है या अवाम की मोहब्बत? अगर ऐसा है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो शख्स कहता है, ईमान बाल्डोन ईमान, अगर ये आपके पास है तो जैसा कि मैंने कहा हर कोई आपकी पैरवी करेगा। कैरेक में मैला चाफियोन के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें किसने हक दिया मेरे तख्त पे बैठने का और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे किले से फौरन निकल जाओ? चाफियोन कहता है, मुझे माफ करना कौंस, लेकिन खुदा की नजर में मैं अब भी तुम्हारा शोहर हूँ, तो इसलिए ये किला और तख्त मेरा है। मैला कहती है, चाफियोन तुम ना खुदा की नजर में और ना ही मेरी नजरों में तुम कभी मेरे शोहर थे। चाफियोन फरमान निकालते हुए कहता है, सुनो, मैं यहाँ शाही फरमान लेकर आया हूँ। ये वाज़ेह है कि सलाउद्दीन उस वक्त तक आराम नहीं करेगा जब तक कि वो किले और कुछ को अपने कब्जे में ना कर ले। वो सबसे पहले बैतुल अज़ान किले का मुहासा करने का इरादा रखता है। मैं यकीनन उसे ऐसा करने से रोकूंगा। मैदान जंग में उसे तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत होगी। ये कहते साथ ही चाफियोन मैला के पास आता है और मजीद कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने जज्बात पे काबू पा सकोगी और सलाउद्दीन की मदद करोगी। ये सुनते साथ ही मैला उस पे हाथ उठाती है, मगर चाफियोन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, एक औरत अपने शोहर पे हाथ उठाई, वो उसका हाथ झड़कता है और चला जाता है। उधर करातेगन सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान कुछ के हालात ठीक नहीं है, लोग रोटी के एक एक टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, सराय अफरा तफरी का शिकार है और खजाना बिल्कुल खाली है, उनके पास कुछ नहीं बचा, वो कफारे के नाम पे मिल्लत को धोखा दे रहे हैं, सिपाही नाफरमानी कर रहे हैं। एलिसा कहता है, खास तौर पर टेम्पलर शोभीर वो बगावत के दाहने पर हैं। ये बात सुलेबी सिपाहियों में भी फैलने लगी है, उनके पास यहाँ भेजने के लिए कैरिक सिपाहियों के अलावा कोई और फौज नहीं। सुल्तान पूछते हैं, क्या उनका सरबराह चाफियोन है? तो एलिसा कहता है, बदकिस्मती से ये वही है जिसके बारे में हमने सुना है, शायद बालिन और चाफियोन शुरू से ही मुत्तहिद थे। सुल्तान कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर बैतुल अहसान के जरिए उनसे इंतकाम लेने का बेहतरीन मौका है। अच्छा, तो क्या तुम्हें मालूम है कि कुफार की फौज कहाँ से आ रही है? तो करातेगन कहता है, मैंने पूछताछ की है कि वो मामूल का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि वो पोशीदा रास्ते को तरजीह देंगे। गुगबरो पूछता है, अब इसे क्या मुराद है? तो सुल्तान कहते हैं, शायद रूम का रास्ता। कदीम मखतूतात में इसका तस्करा किया गया है और कहा जाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल अहसान तक जाने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ इसकी निशानियां पोशीदा हैं। करातेगन पूछता है, हम उन्हें कैसे तलाश करेंगे? अगर हम उन्हें रोक नहीं पाए तो वो हमें यहाँ फंसा लेंगे। क्राकोश कहता है, अगर उनके पास लेबर है तो हमारे पास भी है जो उनकी जबान और जमीन को जानता है। सुल्तान कहते हैं, लिहाजा कल सुबह से हम निशानात तलाश करेंगे, अब आराम करो, कल एक मुश्किल दिन होगा। कुछ में कार्डिनल विलियम और सिबिला से कहता है, पोप हजरत कुछ की कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, उन्होंने आखिरकार हंगामी इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। यह सुनकर विलियम कहता है, पोप हजरत का कौंसल के इस इजलास से क्या ताल्लुक है? जवाब में कार्डिनल कहता है, शहजादी को मलका बनाया जाएगा और लड़गाई को फौरी तौर पर बादशाह बनाने का ऐलान किया जाएगा, ये कुछ को बचाने का वाहिद रास्ता है। यह सुनकर लड़गाई बहुत खुश होता है और सिबिला कहती है, मेरा भाई बाल्डोन एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, ये सच है। कार्डिनल उसकी बात करते हुए कहता है, लिहाजा ये फैसला उसके लिए और कुछ के लिए दुरुस्त साबित होगा। तो आने वाला बाल्डोन तख्त पे बैठते हुए कहता है, जब तक मैं तख्त पर हूँ मेरे बारे में फैसला सुनाने में इतनी जल्दी ना करो, बादशाह के तौर पर यह मेरा आखिरी हुक्म है, हम फौरन जैतून के पहाड़ पर जाएंगे। लड़गाई कहता है, इज्जत माब ये जैतून के पहाड़ पे जाने का वक्त नहीं है। तो बाल्डोन कहता है, हम जाएंगे लड़गाई, कुछ और पूरी ईसाई दुनिया की दवा वहाँ छुपी हुई है। अगर मैं गलत हुआ तो मैं सबके सामने वादा करता हूँ तुमसे कि मैं अपना तख्त अपनी बहन शहजादी सबिला और उसके शोहर लड़गाई के हवाले करके खुद दस्तबरदार हो जाऊंगा। फतह की खुशखबरी का राज वहाँ छुपा है। यह सुनकर विलियम कहता है, बादशाह का हुक्म और वादा वाज़ेह है, हुक्मनामे पे फौरन अमल किया जाए। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में बोरो अपने साथियों के साथ निशानात तलाश कर रहा होता है और कहता है, यही वो मुकाम है जिसके बारे में सुल्तान ने बताया था। अगर ये रूम का रास्ता है तो यहाँ पत्थर होने चाहिए, हमें उन्हें ढूंढना है। भाई बोरा पूछता है, हम जब उसे ढूंढ लेंगे तो क्या फायदा होगा? तो गुगबोरो कहता है, हम जब उसे ढूंढ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी जल्दी करें। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ चाफियोन अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है और पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही रास्ते पे हैं रहबर? जवाब में कमांडर कहता है, परेशान ना हो कौन चाफियोन, आप जल्द ही पत्थर देखेंगे। ये पत्थर बराबर वक्फों में रखे जाते हैं, उनका ताकुब करके हम भटके बगैर रास्ते के इख्तिताम तक पहुंच सकते हैं। चाफियोन कहता है, बालिन के साथ एक ही तरफ से लड़ना बहुत परेशान कुन है एनोक। वो सब भी आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जैतून पहाड़ पर बाल्डोन के हुक्म पे खुदाई जारी होती है। बाल्डोन को देखते हुए सबिला कहती है, मैंने बाल्डोन को इस तरह पहले कभी नहीं देखा, इसकी आंखों में ईमान
ایمان बहुत मजबूत है। मारिया कहती है हमारे बादशाह को वो मिलेगा जिसकी वो तलाश में है और हमारा रास्ता रोशन होगा। विलियम कहता है दर हकीकत में अक्सर सोचता था कि वो क्या ढूंढ रहा है। जंगल में बोरो और उसके साथियों को एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वो तेजी से उसके पास आते हैं और बोरो कहता है तो ये है वो पत्थर। गोगबोरो कहता है इस पे नोकदार किनारा, यह सिमत की तरफ इशारा कर रहा है। करीब में कुछ और निशानियां भी होनी चाहिए। करातेगन कहता है हम क्या करेंगे, क्या हम इसे तोड़ देंगे? तो गोगबोरो कहता है नहीं, हम इसकी सिमत बदलेंगे, इस तरह वो सुर्ख लोमड़ी हमारे जाल में फंस जाएगी। बाइबोरा कहता है भाइयों ये पत्थर बहुत भारी लग रहा है, हम सबको एक ही वक्त में जोर लगाना होगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब पूरा जोर लगा देते हैं मगर पत्थर हिलता तक नहीं। उधर कराकोश सुल्तान के पास जाता है और कहता है मेरे सुल्तान काम करने वाली दीवार के संग बुनियाद तक पहुंच गए हैं। हम जब आग रोशन करेंगे तो बुनियादें गिर जाएंगी और दीवार अपने ही वजन में गिर जाएगी। सुल्तान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम हिमायती कुव्वतों को खत्म कर दें तो फतह नागुज़ीर होगी। शाम में ज़ुमरुद शमसा के पास आती है और कहती है शाम मुंतकिल होने ने आपको थका दिया है। तो शमसा खतून कहती है जब सलाउद्दीन मुहिम पे है चाहे मेरा जिस्म आराम कर ले लेकिन मेरा दिल थकावट महसूस करता रहेगा। ज़ुमरुद कहती है फिर इस गुज़श्ता हादसे ने हालात को मजीद खराब कर दिया है ना? शमसा खतून पूछती है किसके बारे में बात कर रही हो? तो ज़ुमरुद कहती है क्या हमारे सुल्तान ने आपको नहीं बताया? उन्होंने सबकी आंखों के सामने मैला खतून को मौत के मुंह से बचा लिया। यह सुनकर शमसा चौंक जाती है और परेशान होते हुए कहती है तुम क्या कह रही हो ज़ुमरुद, तुमने ये किससे सुना? तो ज़ुमरुद कहती है हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। जब कौन चात्योन अपनी बीवी को कत्ल करने वाला था हमारे सुल्तान ने आखिरी वक्त में मुदाखलत की और उसे बचा लिया। यह सुनते साथ ही शमसा बहुत परेशान हो जाती है। उधर जंगल में सब पत्थर पे जोर आजमाई कर रहे होते हैं, उनका जोश कम नहीं होता मगर वो सब नाकाम दिखाई देते हैं। ये देखकर एसिस कहते हैं हट जाओ सब पीछे हटो। ये कहते साथ वो रस्सी पत्थर में डालकर खुद के साथ लपेट लेते हैं। ये देखकर करातेगन कहता है तुम क्या करोगे, क्या तुम इसे अकेले ही हटाओगे? जवाब में एसिस कहते हैं तुम देखोगे। करातेगन कहता है अरे अकेले तुम नहीं हटा सकते, छोड़ो। तो एसिस कहते हैं तुम सब मेरे साथ जोर लगाओ। एसिस आगे और बाकी सब उनके पीछे होते हैं। करातेगन उन्हें तंग करते हुए कहता है तुम नहीं कर सकते। अगर तुम इसे नहीं हटा सकते तो बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगा क्या तुम एक ही झटके में इसे हटा सकते हो? मैं सबको बताऊंगा, मैं सलाउद्दीन को बताऊंगा कि एसिस एक पत्थर को परिंदे के पर जितना भी नहीं हिला सका। यह सुनकर एसिस गुस्से में खूब जोर लगाते हैं। बिल आखिर पत्थर की सिमत घूम जाती है। एसिस करातेगन को झंझोड़ते हुए गले लगा लेते हैं। तो करातेगन कहता है अरे इसे देखो, यह खुशी में मुझे मार देगा। तुमने इसे खींच लिया, अब मैं तुम्हें खुशी में एक बेड़ दूंगा। एसिस कहते हैं मुझे बेड़ नहीं बल्कि बिछड़ा चाहिए। तो करातेगन कहता है तुम इसके भी मुस्तहिक हो। फिर गोगबोरो कहता है चलो बाकी भी ढूंढते हैं। ये सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और पत्थर का रुख बदला हुआ दें। जैतून के पहाड़ पे खुदाई जारी होती है। काफी देर की खुदाई के बाद लाड़काई बाल्डोन की जानिब बढ़ता है तो सबेला उसका रास्ता रोक लेती है मगर इसके बावजूद लाड़काई आगे बढ़ता है और बाल्डोन से कहता है बादशाह क्या इतनी खुदाई काफी नहीं है, अब इस खेल को खत्म कर दें। इसलिए हमें खुदाई करने वाला सिपाही कहता है यहाँ एक संदूक है। दूसरा सिपाही संदूक निकालता है और बाल्डोन के सामने रख देता है। सब लोग जमा हो जाते हैं और बाल्डोन कहता है ये जॉर्ज का संदूक है। विलियम पूछता है बादशाह हजरत क्या आप अजीज जॉर्ज के बारे में बात कर रहे हैं? तो बाल्डोन कहता है वो मेरा दोस्त है। विलियम बड़े बादब अंदाज में उसे याद करता है। मारिया कहती है मैं जानती थी कि बादशाह कोई मुआवजा करेगा। सबेला पूछती है बाल्डोन क्या तुम इसकी बात कर रहे थे? तो बाल्डोन कहता है असल मुआवजा संदूक के अंदर है, संदूक खोलो। कार्डिनल कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, यह अजीज की रूह की तौहीन है। तो बाल्डोन कहता है ये वही है जिसने संदूक के मुकाम की निशानदेही की और इसे खोलने को कहा। लाड़काई अपने बादशाह के हुक्म पे ये संदूक खोलो। यह सुनते साथ ही लाड़काई सोच में पड़ जाता है। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में चात्योन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और पत्थर की जानिब देखते हुए कमांडर कहता है पत्थर इस तरफ इशारा कर रहा है। कौन किस तरफ? चात्योन पूछता है क्या ये मुमकिन है कि किसी दीवाने ने ये पत्थर रखे हों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता हमें बैतुल अहसान की तरफ लेकर जाएगा। वो कमांडर कहता है पत्थर के निशानात कभी झूठ नहीं बोलते कौन? चात्योन आगे बढ़ते हुए कहता है सलाउद्दीन मैं अनकरीब तुम पे हमला करूंगा। हिनोक क्या तुम्हें लगता है कि बालेन हमारे पहुंचने तक उसे रोक सकेगा? तो हिनोक कहता है मुझे उम्मीद है मगर इस लम्हे वो बोरो और उसके साथियों के हाथों घेर लिए जाते हैं और बोरो कहता है खुशामदीद सुख शैतान, ऐसा लगता है कि तुम अपना रास्ता खो चुके हो, निशानात तुम्हें भेड़िए के जाल में ले आए हैं। चात्योन पीछे हटते हुए कहता है हमला। हिनोक मेरी हिफाजत करो। दोनों तरफ के सिपाही आपस में टकरा जाते हैं और चात्योन की सिपाही करते ही चले जाते हैं। ये देखकर चात्योन काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। बोरो से पुकारते हुए उसके पीछे भाग पड़ता है। जैतून पहाड़ पर बहुत देर इंतजार करने के बाद लाड़काई संदूक खोल देता है और संदूक में से एक पोशीदा चीज निकालता है। उसके कपड़ा हटाने पर वो एक गिलास जैसा होता है। लाड़काई कहता है ये मसीह का मुकद्दस पत्थर है। सब अदबन उसे सलाम करते हैं। मारिया कहती है ये मैं क्या देख रही हूँ खुदाबंद। कार्डिनल भी हैरान परेशान होता है और आगे बढ़कर बाल्डोन के चौके का बोसा लेता है। विलियम सबेला से कहता है शहजादी एक अजीम बादशाह हमारी आंखों के सामने है। सबेला कहती है बिल्कुल विलियम, मेरे बाबा की कुदरत से भी बड़ा बादशाह। बाल्डोन कहता है गिलास को भरो। हुक्म मिलते साथ ही गिलास में पानी भर दिया जाता है। बाल्डोन अपना हाथ मामूली सा जख्मी करता है और खून पानी में डालता है। फिर जैसे ही वो गिलास पकड़ता है लाड़काई समेत सब उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। बाल्डोन वो पानी पी लेता है और बाजू फैलाते हुए कहता है मैं कुछ का बादशाह, कुछ के मुकद्दस अमानतों का मुहाफिज बादशाह बाल्डोन चाहरम हूँ। मेरे जख्म मेरे मुस्तकबिल की फतोहात का निशान है। अब मेरे लिए लड़ो। जान लो कि जब तक तुम मेरे लिए लड़ोगे हमारा खून भी तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। मैं जब तक कुछ पे हुक्मरानी कर रहा हूँ सलाउद्दीन उसे कभी नहीं ले सकेगा। विलियम पूरे जोश खरोश से कहता है अजीज बादशाह बाल्डोन की खातिर। सबेला भी चिल्लाते हुए कहती है अजीज बादशाह बाल्डोन की खातिर। मारिया भी यही अल्फाज दोहराती है। लाड़काई का कमांडर भी यही कहता है और लाड़काई कहता है अजीज बादशाह बाल्डोन की खातिर। बाल्डोन वो गिलास आसमान की जानिब कर देता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि बैतुल अहसान किले में सलेबियों की दौड़ें लगी होती हैं। मार्कोस बालेन के पास आकर कहता है कैरिक से हमारी मदद के लिए आने वाला दस्ता रास्ते में सलाउद्दीन की तरफ से लगाई गई घात में फंस गया। बालेन परेशान होते हुए कहता है हम यहाँ फंस गए हैं मार्कोस, मुझे उम्मीद है कि कुछ की फौज हमारी मदद के लिए आएगी। मार्कोस कहता है जनाब अगर कुछ की फौज ना आई तो क्या हम किला हवाले कर देंगे? बालेन कहता है कभी नहीं, मुझे एक फर्ज दिया गया है, हालात जैसे भी हूँ हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और दिफा करेंगे। उधर खलील सुल्तान के पास आता है और कहता है मेरे सुल्तान हमारे बहादुरों ने कैरिक से आने वाले इमदादी दस्ते पे हमला कर दिया है। सुल्तान पूछते हैं क्या उन्होंने चात्योन को पकड़ा? खलील कहता है मेरे सुल्तान वो भाग गया। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं भागो चात्योन भागो, कितने दूर भाग सकोगे, भागो। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि लाड़काई बाल्डोन सब वापस कुछ पहुंच चुके होते
ہوتے ہیں۔ لاڑگائی کہتا ہے اگر ہمارے منصوبے کے مطابق چاتلیون کی لائی گئی مدد صلاح الدین کو روکتی ہے تو بالین محل کے اندر جو تدابیر اختیار کرے گا یہ صلاح الدین کو مزید مشکل میں ڈال دیں گی۔ ماریا کہتی ہے بازنطینی افواج بھی حرکت میں آ گئی ہیں جس سے ہمیں صلاح الدین اور اس کی فوج کو ختم کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو بادشاہ بالڈون کہتا ہے بظاہر لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی صلاح الدین کو نہیں جانتا۔ صلاح الدین کو ایسے بزدلانہ چالوں سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ صلاح الدین کو شکست دینے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایسے جرأت مندانہ حرکت کی جائے جو اسے حیران کر دے۔ لاڑگائی پوچھتا ہے بادشاہ سلامت آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی بادشاہ مسکرا دیتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں چاتلیون غصے سے کہتا ہے میں تنگ آ گیا ہوں، ایک کے بعد ایک شکست، ایک کے بعد ایک جھٹکا۔ ہنوک کہتا ہے ہم نہیں جانتے کہ کچھ فوج آئے گی یا نہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ تو چاتلیون کہتا ہے مجھے کیا پتا ہم کیا کریں گے، ہم فی الحال کہیں رات گزاریں گے پھر واپس آئیں گے، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ادھر شمسہ فاطمہ خاتون کے پاس آتی ہے اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے میں آپ سے ایک اہم مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں، یہ صلاح الدین کے بارے میں ہے۔ میں نے کہہ رہے کہ کون سمیلا کے صلاح الدین سے محبت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون کہتی ہے دیکھو میری پیاری بیٹی، مگر شمسون کی بات کرتے ہوئے کہتی ہے معاملہ اس بار مختلف ہے۔ کون سمیلا جب اپنے شوہر کی جانب سے ماری جانے والی تھی تو صلاح الدین نے اسے موت سے بچا لیا اور یہ مجھے صلاح الدین نے نہیں بتایا، میں نے باقیوں سے سنا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون کہتی ہے میری بیٹی ضرور اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ شمسہ کہتی ہے بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ عورت گلزارہ کی قاتل نہیں ہے؟ اس نے کل ہی ہمارے ہاتھوں سے سلطان اسماعیل کو چھین لیا، صلاح الدین اس کے لیے اپنی جان کیسے خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ فاطمہ خاتون کہتی ہے اپنے دل کو تسلی میں رکھو، ہماری روایت میں جو بھی ہمارے دسترخوان پہ ایک بار بیٹھتا ہے ہم ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میلا خاتون بعد میں ہم سے متنفر ہی کیوں نہ ہو جائے، کسی وقت میں اس نے ہمارے محل میں پناہ لی تھی، یقیناً جو کچھ تم نے کہا اس نے ایسا کیا ہوگا اور وجہ یہی ہوگی۔ دوسری طرف بورو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلطان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بھائی خوشخبری ہے، کہہ رہے کہ دستے کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاتلیون صرف چند سپاہیوں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ گوگبورو کہتا ہے جو دستہ پیچھے سے آ رہا تھا وہ بھی منتشر ہو گیا میرے سلطان۔ ایسس کہتے ہیں اب وہ دوبارہ منظم ہو کر اپنا راستہ جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ کراتیکن صندوق دکھاتے ہوئے کہتا ہے اور اس سے بڑھ کر جنگ کی غنیمت، میں نے وہ صندوق نہیں چھوڑا جو اس ہنوک نے گرجا گھر میں ہم سے لیا تھا۔ سلطان کہتے ہیں جلد ہی جیت کا تاج قلعے کی فتح سے سجے گا انشاءاللہ، کیونکہ اب کوئی سہارا نہیں آئے گا، اب ہمارے آخری ضرب لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ کراکوش کیا تیاریاں مکمل ہیں؟ تو کراکوش کہتا ہے ہم نے دیواروں کی بنیادوں کے نیچے بارود رکھا ہے میرے سلطان، ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ سلطان کہتے ہیں آپ نے بڑی محنت کی ہے، ہم کل فجر کے وقت اپنی پہلی مشعل روشن کریں گے، جب قلعے کی دیواریں گریں گی تو ہم دو اطراف سے حملہ کریں گے، اللہ ہمیں مایوس نہ کرے۔ شام میں طبیبہ شمسہ کا معائنہ کرنے کے بعد آگے بڑھتی ہے تو فاطمہ خاتون سے پوچھتی ہیں کیا خبر اچھی ہے نا؟ تو طبیبہ کہتی ہے شمسہ سلطانہ کے دل کی دھڑکن مضبوط ہو گئی ہے میری والدہ، تمام علامات ظاہر کرتی ہیں کہ وہ حاملہ ہیں۔ پیچھے آنے والی شمسہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور فاطمہ خاتون اسے گلے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں تم چاند کی طرح خوبصورت بچے کو جنم دوگی انشاءاللہ۔ پھر اسے اداس دے کر کہتی ہیں ایسے اداسی کا مظاہرہ نہ کرو، یہ خدا کی ایک نعمت ہے۔ تو شمسہ کہتی ہے بعض اوقات انسان اتنا حیران ہو جاتا ہے کہ اسے اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، میری پرورش ایک یتیم کے طور پہ ہوئی، میں کیسے خود کو ایک اچھی ماں بنا پاؤں گی؟ فاطمہ خاتون سے کہتی ہیں اللہ وہ عظیم ترین احساس تمہارے دل میں ڈال دے گا، ہم سب تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم صلاح الدین کو خوشیوں سے بھرپور خبر دیں؟ تو شمسہ کہتی ہے وہ جب کہ مہم میں ہے تو ایسا کیسے ہوگا؟ فاطمہ خاتون کہتی ہے اس نے اپنی لشکرگاہ شام کے قریبی مقام پہ بنائی ہے اور یہ خبر مہم کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ شمسہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے صلاح الدین کو ہر روپ میں دیکھنا میرے لیے زندگی کا ذریعہ۔ بیت الحزان میں مارکوس بالین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ خط بادشاہ بالڈون کی جانب سے ہے۔ خط پڑھنے کے بعد بالین کہتا ہے ہم قلعے کو بچانے کے لیے نیا منصوبہ بنا رہے ہیں مارکوس، ہمارے چھوٹے بادشاہ کے بنائے گئے بڑے اور عظیم منصوبے کے ساتھ۔ کچھ میں بادشاہ اپنے بال سنوار ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے چہرے پہ ایک زخم کا نشان دکھائی دیتا ہے۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور لوہے والا ماسک اٹھا لیتا ہے، پھر آئینے کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے خداوند کی ذرا پہننے والا فتح پہ شک نہیں کرتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بادشاہ ماسک پہن لیتا ہے اور ایک نئے انداز میں نظر آتا ہے۔ ادھر کارگاہ میں سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اس جگہ کو بیت الحزان کیوں کہا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ تو کرتگن کہتا ہے میرے سلطان یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے آنسو بہائے، وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 6 سال تک اسی حالت میں رہے۔ سلطان اس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے سلطان بنے تو انہوں نے اپنے بابا کو اپنی قمیض بھیجی۔ بورو کہتا ہے جب یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض چہرے پر ملی تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ سلطان کہتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے، کہا جاتا ہے کہ بیت الحزان دنیا ہے، ابن آدم روتا ہوا اس کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، آزمائشوں تکلیفوں اور پریشانیوں میں اس کا سہارا لیتا ہے، دنیا کا پردہ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، جو کوئی ایمان کی قمیض کو اپنی آنکھوں پہ ملے گا تب جا کے اس کی آنکھیں کھلیں گی، بیت الحزان کے مرحلے وار سہارا ہونے کو سمجھے گا۔ ایسے پوچھتے ہیں میرے سلطان ہماری منزل کیا ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں ہماری منزل قدس ہے، وہ بابرکت جگہ جس کی طرف وہ عظیم شہر مراد ہے، یہ محبت ہے جو صورتوں اور جگہوں سے بالا تر ہے، قدس کے بغیر محبت نہیں ہے۔ کراکوش کہتا ہے اللہ کا شکر ہے محبت اور چاہت اب بھی ہم میں ہے میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں تو پھر ایمان کی ذرا پہن کر بیت الحزان کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، وہاں کفر کے اندھیرے کی جگہ ایمان کی روشنی بکھیریں۔ یہ سن کر سب آمین 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 کہتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں کہ خلیل سلطان کو جنگی ٹوپی پہنا دیتا ہے، جسے پہننے کے بعد سلطان کا روب بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سلطان کے ساتھی ان کے پاس پہنچتے ہیں اور بورو کہتا ہے لشکر حرکت میں آنے کے لیے آپ کے حکم کا منتظر ہے میرے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں سب اپنی جگہ لے لیں، جب کراکوش مشعل روشن کر کے دیواروں کو تباہ کرے گا آپ کے لیے میں 2 اطراف سے داخل ہوں گے، میں بالین کو زندہ چاہتا ہوں اور اسے اس کی سزا دوں گا۔ خلیل کہتا ہے وہ کافر جس سے مجھے امید تھی کہ اسلام قبول کر لے گا میرے سلطان، اس نے مجھے ہر بار مایوس کیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں انسان حق اور باطل کے درمیان نہیں رہ سکتا، یا تو حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ، بالین اپنے راستے کی قیمت ادا کرے گا۔ جنگل میں چاتلیون آگے بڑھتے بڑھتے گر جاتا ہے، کمانڈر اسے اٹھانے لگتا ہے مگر چاتلیون اسے روک دیتا ہے اور کچھ سنتے ہوئے کہتا ہے ہنوک کیا تمہیں بھی آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ سن کر ہنوک کہتا ہے ہاں مجھے بھی آ رہی ہیں۔ وہ دونوں آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو سامنے سے ایک بڑی صلیبی فوج آ رہی ہوتی ہے جس کی کمان بالڈون کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر چاتلیون کہتا ہے کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا کچھ کی فوج واقعی بالڈون کے ماتحت ہے؟ تو ہنوک کہتا ہے اگر ہم ایک ہی خواب نہیں دیکھ رہے تو فوج بادشاہ بالڈون کی کمان میں ہے، لشکر میں سبیلا ماریا اور باقی بھی بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں اور
और वो लश्कर आगे बढ़ता ही चला जाता है। इधर सुल्तान भी अपनी फौज के साथ तैयार होते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे रब हमें फतह अता फरमा, दीवारों के साथ साथ कुफर की बुनियादें भी जमीन बोस हो जाएं। उनके देखते देखते बैतुल एहसान की दीवारों के नीचे धमाके शुरू हो जाते हैं। तो खलील खुश होते हुए कहता है, मेरे सुल्तान ये मामला खत्म हुआ, जल्द ही किला गिरने की खबर आएगी। तो सुल्तान कहते हैं, खलील जरा रुको, मंजिल इतनी आसानी से हाथ नहीं आती, हम काफी आंसू बहने के बाद देखेंगे। इसलिए में एक बग्गी वहाँ पे आ रुकती है जिसमें से फातिमा खातून और शमसा उतरती हैं और खुशी में तेजी से सुल्तान की जानिब बढ़ती हैं। उन्हें देखकर सुल्तान हैरान परेशान होते हैं और पूछते हैं, माँ आपका यहाँ क्या काम है, क्या कुछ गलत हुआ है? फातिमा खातून कहती है, नहीं नहीं, क्या गलत होना है, शमसा तुम्हें खुशियों से भरपूर खबर देगी। मगर सुल्तान कहते हैं, माँ मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने यहाँ आकर अच्छा किया, आपकी यहाँ मौजूदगी। फातिमा खातून उनकी बात करते हुए कहती है, बेटे तुम बैतुल एहसान में खुशकुन एहसास के साथ दाखिल हो, मैंने ये सोचा तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। दूसरी तरफ दीवार टूटने के बाद बोरो अपने साथियों के साथ मुहतात अंदाज में किले में दाखिल होता है, मगर वहाँ पे उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तो करातेगन कहता है, वो कहाँ है, यहाँ कोई नहीं है, ये कैसा नामुनासिब इस्तकबाल है, देखो हम आए हैं। मगर कोई जवाब नहीं मिलता। वो मुहतात अंदाज में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। दूसरे रास्ते से एथिस और गुकबोरो भी आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर उन्हें भी कोई दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सुनसान खामोशी। गुकबोरो कहता है, ये खामोशी बिल्कुल भी अच्छी इलामत नहीं है। एथिस कहते हैं, वो किला छोड़कर तो नहीं जा सकते, वो ऐसा क्यों करेंगे? बाइबोरा कहता है, एहतियात से, गलत हो सकती है। वो सब भी आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, मगर ना तो कोई दुश्मन ना दुश्मन का नामो निशान। वो दोनों ही आपस में आमने सामने आ जाते हैं और एहसास होने पर कहते हैं, ये तो अपने ही लोग हैं। वो आगे बढ़कर तेजी से एक दूसरे के पास आते हैं। कराकोश कहता है, बोरो इस तरफ भी कोई नहीं है, वो कहाँ है? तो बोरो कहता है, हमने इस जानिब किसी के सांस लेने की भी आवाज नहीं सुनी, बुर्जों में भी कोई नहीं है, अगर वो गात लगाकर हम पर हमला करने वाले होते तो अब तक नमदार हो चुके होते। गुकबोरो कहता है, बालेन कहाँ हो तुम? इसलिए में कराकोश को पीछे से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। वो सब उसे देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। करातेगन कहता है, ये कैसी आफत है? तो बोरो कहता है, ये इशारा है कि वो लश्करगाह पे हमला करेंगे, चलो दौड़ो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब दौड़ पड़ते हैं। उधर बाल्डोन अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में बालेन उसके पास आता है और कहता है, मोहतरम बादशाह आपके हुक्म के मुताबिक हमने उनकी नजरों में आए बगैर किला हाली कर दिया। तो बादशाह कहता है, बहुत खूब, अब उनको नजर आने का वक्त है। उधर लश्करगाह में सुल्तान शमसा खातून से कहते हैं, शमसा ये खामोशी मेरे अंदर के तजस्सुस को ज्यादा परेशान कर रही है, क्या हुआ बताओ? तो शमसा खातून कहती है, सलाउद्दीन गालिबन। वो कुछ कह नहीं पाती तो फातिमा खातून एकदम से कहती है, बेटे मुबारक हो, तुम्हारी औलाद होगी। यह सुनकर सुल्तान और उनके साथी बहुत खुश होते हैं। सुल्तान शमसा खातून का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मेरे अल्लाह का शुक्र है, हमारी जीत का ताज हमारे होने वाले बच्चे के सर सजेगा। उधर बोरो अपने साथियों को लेकर जंगल से सर पट भाग रहा होता है। वो जल्द से जल्द लश्करगाह पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर सुल्तान शमसा खातून से कहते हैं, मुझे तुमने अजीम तरीन खुशखबरी दी है, सलामत रहो शमसा। अगले लम्हे सुल्तान के लश्कर पे तीर बरस पड़ते हैं। ये देखकर सिपाही चिल्लाते हुए कहते हैं, सुल्तान की हिफाजत करो। तीर मारने वाला बादशाह बाल्डोन अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है और हाथ के इशारे से कहता है, सलाउद्दीन को मेरे पास लाओ, जिंदा या मुर्दा। यह सुनते साथ ही उसकी फौज आगे बढ़ती है और भागती दौड़ती हुई लश्करगाह में चढ़ दौड़ती है। ये देखकर सुल्तान फातिमा खातून से कहते हैं, मां छकड़े की तरफ जाएं, छकड़े की तरफ जाएं। अचानक के हमले में जंगी बुरी तरह कट रहे होते हैं। हिनोक लड़ाई में जंगियों को शहीद करता ही चला जाता है। चाफियों के साथ मौजूद लड़गाए तीर ताने खड़ा होता है और सुल्तान का निशाना ले रहा होता है। सुल्तान अपने घर वालों को छकड़े में बिठा देते हैं और खलील से कहते हैं, इन्हें यहाँ से ले जाओ खलील। तो खलील कहता है, मेरे सुल्तान आप भी चलें। मगर सुल्तान कहते हैं, मैंने कहा इन्हें ले जाओ जल्दी। मारिया खुश होते हुए बादशाह से कहती है, इज्जत माप आपकी पहली मुहिम कामयाब हो। तो बाल्डोन कहता है, सलाउद्दीन को शिकस्त खोरदा देके बगैर खुद को फातिह समझना अहमकाना फेल है। बालेन भी मार्कोस के साथ आगे बढ़ जाता है। सुल्तान का निशाना लेते हुए लड़का कहता है, ये जहर आलूद तीर तुम्हारे लिए है सलाउद्दीन। ये कहते साथ वो तीर छोड़ता है जो सुल्तान के कंधे में जा लगता है। ये मंजर देखकर वो और चाप्योन बहुत खुश होते हैं। सुल्तान तीर तोड़ डालते हैं और वो दोनों सुल्तान के पास आते हैं। लड़का कहता है, सलाउद्दीन यहीं तक था, तुम रास्ते के अंजाम पे आ गए हो। फिर चाप्योन कहता है, इस्लाम का नाकाबिले शिकस्त कमानदार शिकस्त के दाहिने पे है। सुल्तान कहते हैं, तो ये कह रहे हो? हाँ, फिर हमला करो। वो दोनों एक साथ जख्मी सुल्तान पे हमला करते हैं। कुछ देर उनके हमले रोकने के बाद सुल्तान की आंखें धुंधला जाती हैं। बालेन परेशान होते हुए मार्कोस के साथ ये मंजर देख रहा होता है। सुल्तान के हाथ से तलवार गिर जाती है, जहर असर दिखाना शुरू कर देता है। सुल्तान जमीन पे गिर जाते हैं। बोरो और उनके साथी नहीं पहुंच पाते। चाप्योन कहता है, आह सलाहुद्दीन, आह, जहर वाले तीर ने हमारा काम खत्म कर दिया है। पीछे सुल्तान का लश्कर मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन सुल्तान से सब ला इल्म होते हैं। और नाजरीन, यहीं पे एपिसोड भी इख्तिताम पजीर